A very good morning to all of you. I, Garima Jain, Assistant Professor at DME Media School, welcome you to the orientation session organized by Media School, Delhi Metropolitan Education, Noida, a premier college affiliated to Guru Gobind Singh Indraprastha University and approved by Bar Council of India. Today's orientation is your gateway to understanding media studies and discovering the opportunities ahead. Embrace this journey with enthusiasm, ask questions, and connect with peers. Today, we'll explore the essential skills needed for TV news professionals, including digital storytelling, live reporting, and ethical journalism. You'll learn how to adapt the evolving media landscape and stay ahead in this fast-paced industry. Let's shape the future of news together. I'm honored to extend a warm welcome to Dr. Parul Mehra, Head DME Media School. Our distinguished guest today is Mr. Ashok Srivastav, a prominent figure in news industry. Let's give a huge round of applause to both of them. Mr. Ashok Srivastav is a senior consulting editor and anchor at DD News, hosting a popular program, Do Tuk. With a journalism career spanning nearly 3 decades, he started at newspapers like Navbharat Times and Panchjanya before moving into television. Mr. Srivastav has earned recognition not only as an anchor, but also for his field reporting covering complex issues in Kashmir, Ayodhya, and West Bengal since 1993. His latest book, Modi vs. Khan Market Gang, became the #1 bestseller in political section. Sir is also a TEDx speaker and was honored with Bharat Gaurav Award in UK Parliament, along with a recognition from the Mangalam Swaminathan Foundation for his significant contribution to journalism. It's a pleasure to have you here, sir. I would request Ma'am Parul Mehra to kindly felicitate our guest. Also, I would request Mr. Vishal Sahai, who has co-authored the book Suchna and Sanchar Ke Naye Aayam, to gift it to Sir. I would like to extend an invitation to Professor Parul Mehra, the head of DME Media School, to deliver her welcome address and extend a warm welcome to our guest. Honorable guest, Mr. Ashok Srivastav ji, my dear colleagues and my dearest students, very good morning to all of you. Well, I feel truly ecstatic today to extend my warm welcome to the luminary from the fraternity of media. And we are highly privileged and honored to have presence of Mr. Ashok Srivastav ji, who is a senior primetime anchor at DD News. Give a huge round of applause to sir. And for this, I would like to thank Mr. Vishal Sahai, my colleague, for consistent coordination with Ashok ji and making this event possible. Also, I would like to tell you that these days there are very rare media professionals who have mission, vision, and goals which are aiming to selflessly serve the mankind. And we are very fortunate that we have one with us amongst, in this studio, who is a person who is ready to serve mankind in many possible manner. I am very, very glad to say that Sir is an unconventional master of a dauntless courage and an inspiring attitude, who is always ready to come up with the stories in a multifarious ways, and he tries to give the best to the audiences. I would like to thank Ashok ji for accepting our invitation and making it possible to share his sea of knowledge with all of us today. I am also very thrilled to see eager and enthusiastic faces among my students who are ready to embark on the journey, on the path, which is both challenging as well as immensely rewarding too. But I would like to take a moment to talk about what lies ahead in this journey for all of you, particularly for the students who want to embark in a way where they have to come into the dynamic world of TV news industry. Because this industry is about, covering of event and shaping the opinion, but it is beyond that. Here, you have to not just collect something and disseminate to the public, but what is very important is that you have to uphold your integrity and truth also.
So get ready to embark your journey in the TV news industry. Believe me, when I was thinking about this topic of navigating of new era in the broadcast journalism, believe me, the first name that came to my mind was of Ashok ji only. And I discussed with Vishal ji to please coordinate with him for a reason, because sir can be the best person to talk about what are those skills which are required in this industry now. Because sir is in this industry from last 25 years, and he has witnessed different transition in the making of content, in its delivery, and definitely technological advancement is also there. So sir is the best person to discuss about this journey of TV news industry and the different transitions that are taking place after the advent of artificial intelligence also. This field is definitely rapidly evolving, and I would like to ask my students, in fact, I would like to tell you all that it is good to be open to explore different avenues related to this field. It is good to explore, to be open about learning of different platforms, softwares which are associated to be a skill learner in this field. So in the end, I just wanted to say, stay curious, be positive, be proactive, so that whatever this industry offers you, you have skills to understand that. Be very happy that Ashok ji is amongst us and he's here to guide you for the TV news industry. Take maximum out of it. Thank you all of you. Thank you Ashok ji once again to being a part and making this event possible for us. Thank you once again. Thank you so much, ma'am, for your encouraging words. In today's rapidly evolving media landscape, broadcast journalism demands new skills and adaptability. This session will explore the essential tools TV news professionals need to succeed, from mastering digital technologies to enhancing storytelling techniques. For this, I would request sir to please take the session forward. Thank you, गरिमा जी. बहुत बहुत शुक्रिया. पारुल मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार. आपने मुझे अवसर दिया. विशाल मेरे छोटे भाई भी हैं, मित्र भी हैं, तो उनसे तो मैं अवसर छीन भी सकता था लेकिन उन्होंने प्यार से बुला लिया तो मैं आ गया. आप सब लोग जो यहाँ पर हैं, एक नई ज़िंदगी की आपकी शुरुआत हो रही है, ज़िंदगी के एक नए चैप्टर की शुरुआत हो रही है, क्योंकि आप लोग जिस फील्ड में आ रहे हैं उस फील्ड का मुझे एक तजुर्बा है, लंबा अनुभव है. उस फील्ड को मैंने जिया है. 30 साल में आप लोगों की शायद उम्र भी नहीं है जितने, जब आप लोग ऑलरेडी, जब आपका जन्म हुआ होगा तो मैं ऑलरेडी इस लाइन में था, और तब से जो परिवर्तन हुआ है वो मैंने बहुत देखे हैं. इसलिए अपने अनुभव के आधार पर कुछ चीज़ें आपको सिखाने की कोशिश करूँगा, कुछ चीज़ें आपको बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैंने कहा आपकी एक नई शुरुआत है. सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि मैम ने भी कहा, और हम स्किल की भी बात कर रहे हैं इस पूरी इंडस्ट्री में, इस मीडिया इंडस्ट्री को लेकर के. लेकिन जहाँ तक स्किल की बात है, एक क्लास में या एक चैप्टर में या एक लेक्चर में मैं आपको स्किल तो खैर आपको क्या मैं बता सकता हूँ, लेकिन हाँ कुछ टिप्स ज़रूर दे सकता हूँ. हालांकि मैं ये कहूँगा कि आपके इस इंस्टीट्यूट में मैं पहली बार आ रहा हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि जो लोग आपके साथ हैं, जो लोग आपको गाइड कर रहे हैं, वो आपको आपकी स्किल को एनहेंस करने में पूरी तरह से मददगार होंगे. उस मामले में आप सही जगह पर हैं, सुरक्षित हाथों में हैं, ये मैं कह सकता हूं, क्योंकि मैं विशाल को जानता हूं, पारुल मैम का एक लंबा एक्सपीरियंस है, गरिमा जी का एक लंबा एक्सपीरियंस है. तो ये पूरी फील्ड जो है, ये एक्सपीरियंस इसमें बड़ा मैटर करता है. किताबों में जो लिखा है, जो आप पढ़ना चाहते हैं, जो पढ़ाया जाता है, उसका कोई ज़्यादा मायने नहीं है. मैं आपको ये बता दूँ कि मैं खुद भी जो है, मैं मीडिया में ट्रेंड नहीं हूँ. मैंने मीडिया की कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली है, क्योंकि जब मैं मीडिया में आया तब हार्डली बहुत कम लोग होते जो ट्रेंड होकर आते थे, मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई करते थे. मैंने मास कम्युनिकेशन पढ़ी नहीं है, मैंने सीखी है. जर्नलिज्म मैंने इसका कोई कोर्स नहीं किया, मैंने सीखा है, क्योंकि फील्ड में रह के जो सीखना होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. तो इसलिए मैं उस आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर आपको कुछ बताने की कोशिश करूँगा, और उसके बाद मैम की परमिशन होगी तो हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे, ताकि आप लोगों की जो जिज्ञासाएं हैं उनको मैं शांत कर सकूं, और उसके बारे में आपको कुछ बेहतर टिप्स दे सकूं. जब मैं यहाँ से जाऊं तो आपको लगे कि आपको कुछ ऐसा मिला जो आपकी ज़िंदगी में आपके प्रैक्टिकली आपके काम आ सकता है.
सबसे पहली बात तो ये कि आप लोग क्योंकि फर्स्ट ईयर के हैं, कुछ लोग सेकेंड ईयर के हैं, तो मैं आप सब लोगों को मोटे तौर पर 3 कैटेगरी में बांट रहा हूं। 3 कैटेगरी में, क्योंकि आप लोग यहां पर हैं, कुछ सपने लेकर आए होंगे, कुछ आपकी एस्पिरेशंस होंगी, कुछ सोच कर आए होंगे। तो मैं मोटे तौर पर आपका जो पूरा ग्रुप है उसको 3 कैटेगरी में बांट रहा हूं। पहली कैटेगरी जो है वो है महात्मा गांधी शहरी रोजगार गारंटी स्कीम वाले जो लोग हैं। आपने शायद ये स्कीम नहीं सुनी होगी, लेकिन महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी, मनरेगा का नाम आपने सुना होगा। मनरेगा एक ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार गारंटी की स्कीम है। तो आप में से बहुत सारे, हो सकता है कुछ लोग हों और बहुत हो सकता है बहुत कम लोग हों जो महात्मा गांधी शहरी रोजगार गारंटी स्कीम के तहत आए हों। ये रोजगार गारंटी कुछ होती नहीं है, ये कोई शब्द नहीं है, मैंने गढ़ा है आप लोगों के लिए। इसलिए गढ़ा है क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट आज के दौर में ऐसे मिलते हैं जो इसलिए आते हैं कि हमको एक डिग्री मिल जाए, रोजगार मिल जाएगा। वो ये सोच कर आते हैं कि एक डिग्री इक्विवेलेंट टू आपको रोजगार है, तो उनको लगता है कि मैंने डिग्री ले ली तो मुझे गारंटी है मुझे रोजगार मिल जाएगा। कुछ लोग आपको बरगला भी देते हैं, कुछ फैमिली में भी कह देते हैं अरे तुम ग्रेजुएशन कर लो, डिग्री ले लो, मैं तुम्हें सेट कर दूंगा। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। तो एक कैटेगरी है जो यहां सिर्फ इसलिए आए हैं कि उनको लगता है कि डिग्री ले लेंगे तो रोजगार मिल जाएगा। तो अगर आप में से ऐसे लोग हैं तो मैं कहूंगा कि आप लोगों को मुझसे निराशा होगी, क्योंकि मैं मानता हूं कि मीडिया इंडस्ट्री में उन लोगों का कोई भविष्य नहीं है जो सिर्फ रोजगार लेने आए हैं। तो अगर आप रोजगार के सोच कर आए हैं तो फिर आपको निराश मैं करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है ये रोजगार की स्कीम नहीं है, यहां आप रोजगार के लिए नहीं आते। बाकी जो 2 कैटेगरी हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। अब उन बाकी 2 कैटेगरी में भी कौन लोग होते हैं? एक होते हैं फैशन वाले, एक होते हैं पैशन वाले। और फैशन वाले कौन से हैं, पैशन वाले कौन से हैं? फैशन वाले वो हैं कि भाई हमने सुना, लोगों से सुना, किसी ने बता दिया कि अरे मीडिया इंडस्ट्री बड़ा अपकमिंग है, एंकर बन जाओ, बड़ा लाइट्स, कैमरा, एक्शन, ग्लैमर। तो वो फैशन में आ गए, क्योंकि ये जो कोर्स है बड़ा इन है। आज की तारीख में मीडिया की बड़ी डिमांड है, बड़ा अच्छा लगता है, जर्नलिस्ट हैं, एक बड़ा रॉब होगा, एंकर हैं, एक ग्लैमर होगा। तो वो लोग फैशन में आ गए क्योंकि उनको लगा। तो जो फैशन में आए हैं, ठीक है, हो सकता है आप लोग चमक दमक देख के आए हों, लेकिन जो फैशन वाले भी हैं, मैं कहूंगा यहां पर अपने आप को रोक लीजिए, क्योंकि इस फील्ड में वही सफल हो सकते हैं जिनके पास पैशन है। बिना पैशन के, बिना जज्बे के आप इस लाइन में, मीडिया इंडस्ट्री में आप सफल नहीं हो सकते। सर्वाइव कर सकते हैं, सर्वाइवल कोई समस्या नहीं है। आप आएंगे, आपको एक नौकरी, आपने अच्छी डिग्री ले ली, आपकी थोड़ी स्किल आपके पास आ गई, तो आपको कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगा, आप सर्वाइव कर जाओगे। लेकिन आप सर्वाइव होने के लिए यहाँ नहीं आए हो। जिंदगी इसलिए नहीं होती कि आप आइए, नौकरी कीजिए, खाइए, कमाइए और चले जाइए। और जो लोग इस लाइन में आते हैं, मैं क्यों आया इंडस्ट्री में? आज के 30 साल पहले टेलीविजन इंडस्ट्री नहीं थी, सिर्फ अखबार होते थे, लेकिन एक पैशन था। और पैशन ये था कि मुझे लिखने का पैशन था, मुझे लोगों को समझने का, देश को जानने समझने का पैशन था। मुझे ये था कि देश में क्या मैं किसी भी बदलाव का वाहक हो सकता हूं, यानी किसी बदलाव के लिए या देश में कुछ अच्छा करने के लिए मैं अपना कोई भी रोल निभा सकता हूं। हालांकि मैं बड़ा साफ कह रहा हूं, आप ये भी सोच के मत आइएगा, कुछ लोग अगर क्रांति करने के उद्देश्य से आए हैं कि उनको लगता है आप मीडिया लाइन में आ रहे हो और क्रांति कर दोगे, आप बदलाव कर दोगे, तो ये भी मत सोचो, आप लोग कोई क्रांति नहीं कर सकते। क्रांति करने के लिए पहले आपको इस फील्ड में 20 से 25 साल गुजारने पड़ेंगे, कम से कम 10, 15, 20 साल गुजारने पड़ेंगे, तब आप कोई क्रांति कर पाओगे। तो शुरुआत में हम लोग जब सोच के आते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं, उनको जब मैं पूछता हूँ, यंगस्टर को पूछता हूँ, तो वो कहते हैं सर हमें कुछ करना है, हमें कुछ बदलाव करना है, इसलिए आए हैं। लेकिन उनकी जो सारे जो उत्साह है ना, जब वो नौकरी शुरू करते हैं तो 5-10 सालों में उनका निकल जाता है उत्साह। इसलिए निकल जाता है क्योंकि हर जगह जहाँ पर आप काम करेंगे, चाहे वो टेलीविज़न हो, चाहे वो कोई इंडस्ट्री हो, वहाँ पर एक सेट पैटर्न होगा, आपको उस सेट पैटर्न को फॉलो करना होगा। आप वहाँ जाकर तुरंत बदलाव नहीं ला सकते, क्योंकि आपको सेट पैटर्न के अंदर काम करना पड़ेगा। आपके बॉसेस होंगे,
आप जहां काम करेंगे वहां की एक एडिटोरियल पॉलिसी होगी, आपको उस एडिटोरियल पॉलिसी के तहत काम करना पड़ेगा। और तब अगर आप सोच कर आए हो कि आप कोई क्रांति करने के लिए आए हो, तो फिर आपको फ्रस्ट्रेशन होगी कि यार मैं ये करने नहीं आया था। लेकिन यकीन रखिए, अगर आप 10-15 साल डेडिकेशन के साथ खड़े हैं, काम कर रहे हैं, तो आप उस बदलाव के वाहक भी हो सकते हैं। आप उस चेंज के इंजन बन सकते हैं। मुझे आज ये कहते हुए बहुत गर्व होता है, ऑल्दो शायद बहुत सारे लोग इस बात को स्वीकार करते हैं इंडस्ट्री में, कुछ लोग नहीं स्वीकार करते, कुछ लोगों को नहीं मालूम है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे इस बात का सेटिस्फैक्शन होता है, मैं डीडी न्यूज को बदलने में मेरी बहुत बड़ी भूमिका रही। मैं इस बात की मुझे गर्व होता है। मुझे 22 साल हुए डीडी न्यूज में, और 22 साल हुए तो मैं रातों रात मैंने डीडी न्यूज को बदलने के लिए काम नहीं किया। मुझे उसके लिए टाइम लगा। पहले मुझे अपने आप को एस्टैब्लिश करना पड़ा, मुझे जो मेरे बॉसेस थे उनका भरोसा जीतना पड़ा। उसके बाद मैंने नई शुरुआत करी, और 2016 से जो मैंने नई शुरुआत की, उसके बाद मैं कह सकता हूं कि आज जो डीडी न्यूज का जो आप रूप देखते हैं, आज डीडी न्यूज में जो आप पॉलिटिकल जो डिबेट्स देखते हैं, उस बदलाव को लाने में अशोक श्रीवास्तव पहला आदमी है जिसने इस बदलाव को लाने का काम किया। तो वो बदलाव मैं ला सका, लेकिन इसलिए ला सका क्योंकि इतने साल मैं जमीन पर रहकर लो प्रोफाइल मैं चुपचाप काम करता रहा। तो वक्त लगता है, इस बात को समझिएगा। तो फिर मैं आता हूं इस बात पे, देखिए बिना पैशन के ये इंडस्ट्री में आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये 10 से 5 की नौकरी नहीं है। हम में से बहुत सारे लोगों को लगता है 10 से 5 की नौकरी होती है। मैं 10 से 5 की नौकरी नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं मीडिया में आया। मुझे बड़ा अजीब लगता था, सुबह 10 बजे जाओ, रात को 5 बजे आ जाओ, क्योंकि हम अपने आसपास देखते थे, हमारे अंकल, हमारे रिलेटिव सुबह 9 बजे बस्ता उठा के जाते थे, रात शाम को आ जाते थे, फिर वही ज़िंदगी, अपना खाना खाया, सो गए। जर्नलिस्ट की ज़िंदगी ये ज़िंदगी नहीं है, 10 से 5 की नौकरी नहीं है। आपको बहुत सारी चीज़ें मिस करनी पड़ेंगी। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? हो सकता है आपके फ्रेंड का बर्थडे हो, पार्टी हो, लेकिन सडनली कोई इतने बड़ा असाइनमेंट आ गया कि आपको वो मिस करना पड़े। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? हो सकता है आपके घर में ही कोई फंक्शन हो, क्या आप उसे मिस करने के लिए तैयार हैं? मुश्किल लग रहा है? हाँ? मैं कुछ कड़वी सच्चाई बता रहा हूं, क्योंकि ये चीज, ये इस लाइन की आपको मालूम है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। मेरा जब मैं कॉलेज में था, क्योंकि आप थोड़ा सा मुस्कुराए इसलिए मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। मैं जब कॉलेज में था, मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, और उस एक्सीडेंट में मेरी हिप बोन फ्रैक्चर हुआ। मैं 1.5 महीने हॉस्पिटल में था। पिछले 6-7 सालों से मेरी जो हिप बोन है उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई, और प्रॉब्लम बढ़ने के बाद मेरे लिए अब जो है वो कई बार पेन होता है, बहुत तेज़ पेन होता है, और कई बार मुझे बहुत सारा की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। अब मुझे डॉक्टर्स ने कहा कि आप इसका ऑपरेशन करवा लीजिए। उन्होंने कहा कि आपको हिप बोन रिप्लेस कराना पड़ेगा। मैंने कहा भाई, मैं इसके मूड में नहीं था कि अभी मैं रिप्लेस कराऊं। तो मैंने कहा मैं पहले एक्सप्लोर करूंगा कि क्या भारतीय जो चिकित्सा पद्धति है, आयुर्वेद है, बाकी सब चीज़ें हैं, क्या उनमें इसका इलाज है। मैंने सोचा, तो मैंने कहा ऑपरेशन लास्ट आपका वो होना चाहिए, विकल्प होना चाहिए। तो मैंने बाबा रामदेव से टाइम लिया। मैं बाबा रामदेव के पास गया, मैंने बाबा जी बताया कि मेरे साथ ऐसा है। तो बाबा रामदेव ने कहा कि तुम 10 दिन के लिए यहाँ आ जाओ, और 10 दिन बाद तुमको ठीक करके भेज देंगे। तो मैंने बोला ठीक है। और ये बात है 2 महीने पहले की। मैंने बाबा रामदेव से वादा किया था कि मैं जाऊंगा, छुट्टी लेकर आ जाऊंगा। ये जून की बात है। उसके बाद, क्योंकि उसके पहले इलेक्शन थे, तब मैं नहीं जा पाया। मैंने ऑफिस में पूछा, मेरे ऑफिस में लोगों ने कहा जरा बजट निकल जाए उसके बाद चले जाना। बजट निकल गया। फिर मैंने कहा अब, तब तक जो है कुछ और आ गया। फिर बंगाल में इतना सब कुछ हो गया, फिर कुछ और आ गया। अब प्रधानमंत्री जो है उनका एक स्पेशल टूर आ गया। तो वो करते करते आज मैं जुलाई से सितंबर में आ गया। मैं 10 दिन का समय निकालना है वो नहीं निकाल पा सकता अपने लिए, क्योंकि आपकी ये जो फील्ड है ना, ये बहुत डिमांडिंग फील्ड है। तो इसके लिए आपको
मन बना कर आना है कि आप जिस फील्ड में आ रहे हो वहाँ आपके लिए कोई छुट्टी नहीं है, कोई संडे नहीं है, हॉलीडे नहीं है, कोई होली दिवाली नहीं है। हम लोग होली दिवाली पे भी कोई टेलीविज़न चैनल बंद नहीं हो जाते, अखबार छपने बंद नहीं हो जाते। लोग होली खेल रहे होंगे, आपको पता चला आपकी ड्यूटी लगी है और आप जा रहे हैं। लोग दिवाली इंजॉय कर रहे होंगे और आप दिवाली की रात को आपकी ड्यूटी लगी होगी, आप न्यूज़ रूम के अंदर होंगे जब लोग दिवाली मना रहे होंगे। क्या ये सब सेक्रीफाइस करने के लिए आप तैयार हैं? ये आपको तय करना है, क्योंकि फिर कह रहा हूं ये फील्ड 10 से 5 की नौकरी नहीं है। इन सब चीज़ों के लिए आपको तैयार होकर आना है, पैशन के साथ आना है। ये पैशन होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो फिर इस फील्ड में आपका स्वागत है। अब उसके बाद एक चीज़ और है, जैसे मैम ने भी कहा, पारुल मैम ने कहा, ये इवॉल्विंग फील्ड है। आज आप जो पढ़ रहे हैं, आज आप जो सीख रहे हैं, वो आपके बहुत काम का है, लेकिन 2 साल बाद, 3 साल बाद मीडिया इंडस्ट्री की शक्ल क्या होगी आप ये कल्पना नहीं कर सकते। ये एक लर्निंग प्रोसेस है जो आपको हमेशा सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने यहां जो स्किल सीखी वो आपका एंड हो गया, उसके बाद भी आपको रोज कुछ ना कुछ नई प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। मैंने कहा जब मैं इंडस्ट्री में आया, मीडिया इंडस्ट्री में आया, उस वक्त सिर्फ और सिर्फ अखबार होते थे और मैंने सोचा था कि मैं एक अखबार में सब एडिटर रहूंगा और उसके बाद धीरे धीरे असिस्टेंट एडिटर बन जाऊंगा, एडिटर बन जाऊंगा। ज़िंदगी इतनी थी, क्योंकि टेलीविज़न न्यूज़ चैनल होंगे, 24 घंटे होंगे, हमने सोचा भी नहीं था। उस दौर में मैंने सोचा भी नहीं था। तो अखबार की नौकरी करने के लिए आया था मैं। लेकिन जब मैं अखबार की नौकरी करने के लिए आया तो उसके बाद सडनली जो है 80s के एंड में भारत में टेलीविज़न इंडस्ट्री का एंट्री हुई, बूम आया। और द मोमेंट बूम आया तो उसके बाद मैंने नहीं सोचा था, लेकिन जो मेरे बॉस थे, जो अखबार में जिस न्यूज़पेपर में था, मेरे बॉस ने कहा कि अशोक तुम टेलीविज़न इंडस्ट्री के लिए बने हो। मैंने कहा मैंने तो सोचा नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं तुम जाओ, और उन्होंने मुझे टेलीविज़न इंडस्ट्री में कहा कि तुम्हें जाना चाहिए। मुझे मौका मिला नलिनी सिंह के साथ काम करने का, भारत की वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफ, भारत की पहली टेलीविज़न की वुमेन एंकर, महिला एंकर, जिन्होंने भारत में कई तरह के नए नए आयाम स्थापित किए। मुझे नलिनी जी के साथ काम करने का मौका मिला और वहाँ पर मैंने टेलीविज़न की अपनी स्किल्स, वहाँ पर उसको मुझे एक्सप्लोर करने का मौका, क्योंकि फिर कह रहा हूँ स्किल शब्द को समझिए कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं जब अखबार में काम करता था, आपको छोटी सी बात बताता हूँ, मैं अखबार में जब काम करता था, बिकॉज मैं हिंदी अखबार में काम करता था, नुक्ता समझते हैं आप? नुक्ता क्या होता है? नुक्ता, जैसे मैंने कहा जी टीवी, अब जी टीवी जब मैं कह रहा हूं तो यहां नुक्ता लगा हुआ है जी के नीचे। अगर नुक्ता नहीं लगाऊंगा तो मैं कहूंगा जी टीवी। आप नोएडा में बैठे हैं, लेकिन आपके बगल में गाजियाबाद है। गाजियाबाद, नॉट गाजियाबाद। गाजियाबाद इज रॉन्ग, गाजियाबाद इज करेक्ट। तो मैं हिंदी अखबार में काम करता था, वहां नुक्ता नहीं लगाया जाता था। नहीं लगता था तो हम लोग जब नुक्ता लगाते नहीं थे तो बोलते भी नहीं थे। मुझे मालूम नहीं था कि फिर और फिर शब्द में क्या फर्क है। फिर समझते हैं? फिर और फिर टेक्निकल चीज है, बड़ा फिर, ठीक है ना। फिर कोई शब्द नहीं होता, फिर होता है। फिर तेरी कहानी याद आई, फिर तेरी कहानी याद आई, फिर नहीं, फिर तेरी कहानी याद आई बोला तो गलत बोला। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज होती है, लेकिन हम नुक्ता नहीं लगाते थे। अब जब मैं नलिनी सिंह जी के पास गया तो उन्होंने कहा अशोक तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, तुम वीओ करो, वॉइस ओवर करना शुरू करो। अब मुझे नहीं पता था कि मेरी आवाज़ अच्छी है बुरी है, मैंने तो कभी सोचा नहीं था। लेकिन नलिनी जी ने कहा, वो पारखी थी, तो उन्होंने कहा तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, तुम। अब जब मैं वॉइस ओवर करता था तो मैं बोलता था गाजियाबाद, तो सर पकड़ लेती थी, कितना गंदा बोलते हो तुम, गाजियाबाद नहीं होता, गाजियाबाद होता है, जी टीवी होता है। तो उन्होंने मुझे डांट डांट के सिखाया कि ये शब्द, फिर कोई शब्द नहीं होता, फिर होता है, फिर नहीं होता। तो ऐसे वो डांटती थी, वो मेरे साथ बैठ जाती थी, मैं पढ़ता था, बोले अशोक ऐसा नहीं कहो, ऐसा। तो ये चीज हमने सीखी, ये मुझे कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली, लेकिन नलिनी जी ने मुझे सिखाया। तो टेलीविजन में जब आप आ रहे हैं तो इसका मतलब वहां आपको सर्टेन स्किल चाहिए, और वो स्किल है कि आपकी भाषा जो है, आपकी जो उच्चारण है, उच्चारण आपका शुद्ध होना चाहिए, आपकी भाषा अच्छी होनी चाहिए। तो ये सब स्किल्स हैं जो आपको सीखनी होती हैं। और इससे भी बड़ी स्किल जानते हैं क्या? सबसे बड़ी स्किल, ये तो मैंने आपको बताया कि टेलीविजन इंडस्ट्री में जब मैं आया,
और जब नलिनी जी के साथ आया तो उन्होंने फिर फॉर्मली ट्रेनिंग दी, और ट्रेनिंग देने के बाद फिर मैं धीरे धीरे, और मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं टेलीविजन एंकर बनूंगा। मैंने जिंदगी में कभी कल्पना नहीं की थी। हर आदमी का एक सपना होता है कि मैं ये बनूंगा, वो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मुझे जर्नलिस्ट बनना था, लेकिन टेलीविजन में एंकर बनना ये मैंने कभी सोचा नहीं था। अचानक एक दिन मुझे एंकरिंग का मौका मिला, दरवाजे खुलते गए, लेकिन उसके लिए अपने आप को ट्रेंड करना पड़ा, और ये सेल्फ इवॉल्विंग होती है। आपको रोज सीखना पड़ता है। कुछ चीजें आपको सिखा दी, जैसे मैंने कहा यहां आपको कुछ चीजें सिखा दी जाएंगी, लेकिन जब आप फील्ड में जाएंगे, जब आप जॉब करने जाएंगे, तो कुछ चीजें आपको रोज सीखनी पड़ेंगी। आपको टेलीविजन चैनल के अंदर कोई सिखाएगा नहीं। इंटर्नशिप शब्द जानते हैं ना, कि आप लोगों ने यहाँ पढ़ाई कर ली, उसके बाद आपको इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। लेकिन आप ये मत सोचिए जब आप इंटर्नशिप करेंगे तो आपको वहां कोई सिखाएगा, कोई नहीं सिखाएगा। वो आपको टेप देंगे, कहेंगे ये लो टेप वहां दे आओ, इधर भाग जाओ, उधर भागो, यही आपसे करवाया जाएगा। वो सर्टिफिकेट आपको जरूर दे देंगे। लेकिन क्या होता है, जब टेप लेकर आप भागते हैं ना, तो टेप लेकर जब भागते हैं तो आपको चीजें खुद सीखनी पड़ती हैं। आपको खुद वहां बैठ के सीखना पड़ता है कि क्या हो रहा है। जब मैंने टेलीविजन में एंट्री ली तो मैं वीओ करता था, मैं स्क्रिप्ट करता था, लेकिन जब मैं वीओ और स्क्रिप्ट कर लेता था तो मैं अपने वीडियो एडिटर के साथ बैठता था, सिर्फ सीखने के लिए कि ये जो एडिटिंग होती है, इसके एस्पेक्ट्स क्या हैं, ये क्या है, ये चीजें सीखने के लिए मैं बैठता था। ये आपके अंदर सीखने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। फिर कह रहा हूं, कोई आपको सिखाएगा नहीं। अब आपका इतना शानदार स्टूडियो है, इतना बढ़िया आपका सब कुछ है, लेकिन अगर आप ही नहीं करोगे, विशाल जी ने आपको असाइनमेंट दे दिया, अगर आप करोगे ही नहीं तो विशाल जी एक बार बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे, 3 बार बोलेंगे, उसके बाद क्यों बोलेंगे। आप आइए, अपना टाइम वेस्ट कीजिए, जाइए, डिग्री तो आपको मिल ही जाएगी। तो आपको लगता है कि आप अपने माँ बाप का पैसा ऐसे ही वेस्ट करना चाहते हो, तो आपकी इच्छा है, लेकिन आपके पास यहां पर अवसर हैं, यहां पर आपके पास सब कुछ है। उसके बाद सीखना आपकी प्रवृत्ति के ऊपर है कि आप कितना सीखने के लिए तैयार हैं, कितनी मेहनत करने के लिए तैयार हैं। और उसके लिए कोई टाइम नहीं होता। आपको अगर है कि 2 बज गए, अब मुझे घर जाना है, असाइनमेंट छोड़ो यार, कल कर लेंगे, कल कभी नहीं आता। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। आपको जिंदगी में कुछ बनना है तो आपको अपना सब कुछ जो है, सब कुछ दांव पे लगाना पड़ेगा, तब आप इस इंडस्ट्री में सर्वाइव कर पाओगे। लेकिन आपको पता है, इस इंडस्ट्री में जो मैंने ये सब स्किल बताई है आपको, मैंने बताया भाषा आपकी अच्छी होनी चाहिए, और भाषा पर कमांड बड़ी जरूरी है। क्यों जरूरी है, आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। भाषा आप कब कहां इस्तेमाल, शब्द भाषा किसे, वोकैबुलरी आपके पास शब्द भंडार कितना बड़ा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर एक पत्रकार के पास शब्दों का भंडार नहीं होगा, उसके पास वोकैबुलरी नहीं होगी, उसके पास वर्ड्स पावर नहीं होगी, तो अच्छा जर्नलिस्ट नहीं बन सकता। क्योंकि आप अपने आप को एक्सप्रेस किससे करते हो, वर्ड्स से करते हो, भाषा के साथ करते हो। अब एक ही शब्द है, लाश और शव, डेड बॉडी है, लाश शब्द एक ही शब्द है, लेकिन कहां आप लाश शब्द का इस्तेमाल करते हो, कहां आप शव का इस्तेमाल करते हो, और कहां जरूरत पड़ने पर आप पार्थिव देह शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। ये आपकी स्किल है, ये आपकी वर्ड पावर है। ये शब्द, नए नए शब्द सीखना, भाषा ज्ञान बढ़ाना, ये बड़ा जरूरी है। लेकिन जानते हैं इस सबसे भी ज्यादा जरूरी क्या है? अब मैं आपको सबसे बड़ा टिप देने जा रहा हूं, और वो आपको एक कहानी के माध्यम से मैं बताऊंगा। और वो दरअसल कहानी नहीं है, वो फैक्ट है, हकीकत है, सच, रियल इंसिडेंट है। और उस रियल इंसिडेंट पे मैंने एक आर्टिकल लिखा था जो हिंदुस्तान समाचार में छपा था, हिंदुस्तान अखबार में छपा था। मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ, क्योंकि आप में से कितने लोग हैं जो टेलीविज़न में आए हैं तो एंकर बनना चाहते हैं, ईमानदारी से जो बनना चाहते हैं, टेलीविज़न एंकर बनना चाहते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हाथ उठाए नहीं, खुलकर उठाओ, क्योंकि अगर टेलीविज़न में आप आए हो और एंकर नहीं बने तो मुझे लगता मज़ा भी नहीं आता, क्योंकि आप एंकर एक चैनल का फेस होता है,
सो आपको प्राउड होना चाहिए कि आप जो है चैनल का, मेरी डीजी, मेरे मैम मेरे साथ जाती हैं तो उनको शायद कम लोग पहचानेंगे, मुझे ज़्यादा पहचानेंगे, क्योंकि आप चैनल के फेस हो, आपको रिकॉग्नाइज करते हैं। मैं ट्विटर पर बड़ा एक्टिव रहता हूँ, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहता हूँ। पहले तो मैं कुछ भी लिख देता था, उसके बाद जब मेरा ब्लू टिक आया तो मेरे बॉस ने बुलाया, कहा बेटा अब तुम डीडी के फेस हो, जो लिखते हो सोच समझ के लिखा करो, क्योंकि तुम जो लिख रहे हो लोग उसको कहेंगे देखो डीडी का आदमी कर रहा है ऐसा। तो फिर मैंने अपने लिए कुछ लक्ष्मण रेखाएं तय करी कि भाई शब्दों का प्रयोग कैसे करना। तो एंकर बनने में मतलब आपको एक जरूर चांस होता है, एक अच्छा आपको मौका, अपॉर्चुनिटी होती है, आप चैनल का फेस होते हो, लेकिन एंकर बनने के लिए आपको बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है। और मैं जो अभी आपको बताने जा रहा हूं वो सिर्फ एंकर के लिए नहीं है। आप में से कितने लोग हैं जो रिपोर्टर बनना चाहते हैं? ठीक है, तो बहुत सारे लोग एंकर रिपोर्टर जो बनना चाहते हैं, मैं उन सब के लिए बता रहा हूं। आपको क्या लगता है जिन्होंने हाथ खड़े किए एंकर बनना चाहते हैं, एक एंकर की पहली क्वालिटी क्या होती है? हाँ एक मिनट, एक एक करके। हाँ, कॉन्फिडेंस, बायस नहीं होना चाहिए। कोई और कहेगा? ओके, मैं एक एक करके शुरू करता हूं। देखो कॉन्फिडेंस आपने कहा, क्या नाम बेटा आपका? अनुप्रिया। अनुप्रिया, मैं मानता हूं कॉन्फिडेंस जो है वो एक एंकर के लिए नहीं, वो हर इंसान के लिए, हर सक्सेसफुल प्रोफेशनल के लिए पहली क्वालिटी है। अगर आपको पढ़ाने वाले जो आपके प्रोफेसर हैं, अगर उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होगा, क्या वो आपको अच्छे से पढ़ा पाएंगे? अगर एक आईटी इंजीनियर है, अगर वो कॉन्फिडेंट नहीं होगा, अगर एक मेडिकल जो रिप्रेजेंटेटिव है वो कॉन्फिडेंट नहीं होगा, तो क्या एक सफल व्यक्ति बन सकता है? तो मैं मानता हूं कॉन्फिडेंस किसी भी प्रोफेशनल के लिए पहली क्वालिटी है। तो मैं एंकर की क्वालिटी नहीं मानता ये। यहां पर मैं एक बात कहूंगा, मैं ये कह रहा हूं हर एंकर बायस होता है, लेकिन उसके बावजूद एक चीज मैं कहूंगा, आपको बायस आप हो, लेकिन आपको फैक्चुअली रॉन्ग नहीं होना चाहिए। ये एक जर्नलिस्ट की क्वालिटी है, आप फैक्चुअली रॉन्ग नहीं हो सकते। आपके अंदर हो सकता है आप बायस हो किसी भी चीज को लेकर, और हर व्यक्ति होता है, तो आपकी बायसनेस जो है वो फैक्ट्स पर भारी नहीं पड़नी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपने फैक्ट्स को आप छुपा ले और अपनी बायसनेस दिखा दें, वो गलत है, पूरी तरह से गलत है। लेकिन बायस होते हैं सब, तो मैं इसको क्वालिटी नहीं मानता। पीछे से किसी ने कहा था, क्या कहा था मैम आपने बेटा? हाँ, कम्युनिकेशन। ओके, कम्युनिकेशन स्किल फिर अगेन मीडिया में हर व्यक्ति के लिए। अब देखिए, मैं आपने कहा, कोई और इसमें गेस करना चाहता है? सिचुएशन हैंडल करनी आनी चाहिए। ओके, सिचुएशन हैंडल करनी, प्रेजेंस ऑफ माइंड। ओके, ठीक है। हाँ, वोकैबुलरी मैंने पहले ही कहा, वोकैबुलरी, लेकिन मैंने पहली क्वालिटी कहा और अब आप दूसरी क्वालिटी बता रहे हो। देखिए, मैं आपको अब एक रियल इंसिडेंट बता रहा हूं। उस रियल इंसिडेंट को जब आप समझ जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि एक एंकर के लिए या एक रिपोर्टर के लिए पहली इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या है। मैं एक बार टेलीविजन चैनल एक देख रहा था। जनरली हम लोग सुबह उठते हैं तो टीवी ऑन कर लेते हैं, खबरें देखते हैं। टेलीविजन चैनल्स में खबरें कैसे आती हैं? द मोमेंट कोई ब्रेकिंग न्यूज आई, पहला काम चैनल वाले क्या करते हैं? पहला काम क्या होता है चैनल वालों का? वो आपको स्क्रीन पर आपको ग्राफिक के साथ दिखाएंगे। कोई लोग शीशा तोड़ते हैं, कोई कुछ करते हैं। ब्रेकिंग न्यूज, ठीक है ना? ब्रेकिंग न्यूज आपके स्क्रीन पर आ जाती है ग्राफिक के साथ, क्योंकि सबसे क्विक तरीका वही होता है खबर को वो करने का। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद एंकर आता है, एंकर उस ब्रेकिंग न्यूज के बारे में बोलेगा। फिर क्या करेंगे? फिर उस ब्रेकिंग न्यूज को आप एक्सप्लोर करते हो, तो उसमें क्या होता है, क्योंकि जहां पर खबर घटी है वहां आपका क्रू तो अभी नहीं पहुंचा, आपकी कैमरा टीम नहीं पहुंची, तो आप क्या करोगे? आप कुछ ना कुछ लाइव फोन इन्स ले लोगे कि फोन पर आप डिस्कशन करोगे, ताकि क्योंकि खबरों में उस पर बना रहना बड़ा, ब्रेकिंग न्यूज पर बना रहना बड़ा जरूरी होता है। तो ऐसे में एक बार टीवी चैनल, आज के करीब 17-18 साल पहले की बात होगी, तो मैं चैनल चलाया। अब चैनल पर, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूँ इससे पहले इस कहानी में आगे बढ़ूँ, मुझे खुशी है कि आप लोगों ने कम से कम ये नहीं कहा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह देते हैं कि एंकर की पहली क्वालिटी ये है कि उसकी आवाज़ बड़ी अच्छी होनी चाहिए। किसी ने ये भी नहीं कहा कि एंकर बड़ा खूबसूरत होना चाहिए।
ये अच्छी बात है कि आपने नहीं, बहुत सारे लोग कह देते हैं। तो जो लोग कहते हैं एंकर खूबसूरत होना चाहिए, तो उसके बाद मैं कहता हूँ इसके आपके हिसाब से तो मुझे एंकर होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी तो नाक भी ऐसी है, मेरे तो कोई नैन नक्श भी ऐसे ही हैं। कुछ लोग कहते हैं आवाज़, तो मैं कहता हूँ भाई आवाज़ का पैमाना क्या है। एक टाइम में लता मंगेशकर जैसे लोग गाने गाते थे, आजकल तो नाक से हिमेश रेशमिया भी गाते हैं, उनके भी गाने हिट होते हैं, पूजा डिंचक के भी गाने लोग सुनते हैं। तो आवाज़ का कोई पैमाना नहीं हो सकता, खूबसूरती का कोई पैमाना नहीं हो सकता। तो अच्छी बात है आपने ये नहीं कहा। तो अब मैं आता हूँ उस कहानी के ऊपर। तो टेलीविज़न चैनल पे जब मैं बैठा था तो अचानक से खबर आती है बरेली के अंदर जगुआर क्रैश करता है। ठीक है, बरेली के अंदर जगुआर क्रैश किया। अब वो खबर आई तो तुरंत ब्रेकिंग न्यूज़ चलाई चैनल ने, बरेली के अंदर जगुआर क्रैश किया। उसके बाद एंकर आती हैं एंकर, और एंकर को बोला जाता है, बरेली में कोई अधिकारी होगा, डीएम होगा, मुझे इतना याद नहीं है, कहा कि आपको उनके पास लाइव जाना है और उनसे आपको लाइव चैट करना है, मतलब खबर की डिटेलिंग आपको निकालनी है। अब वो जो एंकर थी, एंकर ने जब लाइव फोन इन पे की तो पहला सवाल उसने पूछा कि सर ये बताइए कि ये जो जगुआर क्रैश किया है इसमें कितने यात्रियों के मरने की आशंका है, कितने यात्रियों के मरने की आशंका है। आप लोगों को सवाल ये सही लगा? क्यों 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 गलत क्यों लगा? ओके, ये नहीं करनी चाहिए, वो अच्छी बात है। हालांकि भारत में सारी खबरों की जो गंभीरता है ना, वो डेड बॉडी से ही काउंट होती है, दुर्भाग्य से। ये हिंदुस्तान की हकीकत है कि अगर जितने ज़्यादा लोग मरेंगे उतनी बड़ी खबर। विदेशों में ऐसा नहीं होता, विदेशी मीडिया कोई एक्सीडेंट होते ही मरने पर कैलकुलेशन नहीं करता, लेकिन हमारे यहाँ सबसे पहले लोग मरने की कैलकुलेशन। लेकिन ये जवाब सही नहीं है। कोई और सही शब्द नहीं है? अच्छा, और कोई? ओके, इसके अलावा? अच्छा ठीक है, हाँ ओके, नहीं मतलब डिटेल पूछनी थी। तो अगर कोई विमान दुर्घटना हुई है तो उसमें लोगों को डर तो होगा ना भाई, कितने यात्री मारे गए। हिंदुस्तान की साइकी के हिसाब से मैं कह रहा हूं, हिंदुस्तान की साइकी के हिसाब से सवाल गलत नहीं था कि भाई कितने यात्रियों के मरने की आशंका है। लेकिन मैं इस सवाल को थोड़ा चेंज कर लेता हूं, यह सोच करके कि आप लोग उस दौर के पत्रकार हैं, आप लोग उस दौर में के युवा हैं जिस दौर में आपने जगुआर नहीं सुना होगा। ठीक है, अब मैं इस खबर को आज के संदर्भ में ले आता हूं। मैं जगुआर को चेंज कर देता हूं राफेल के साथ। आपको एक उदाहरण, मतलब एक आपको हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रहा हूं कि राफेल क्रैश करा। क्या यह सवाल पूछना सही है एंकर का कि कितने यात्रियों के मरने की आशंका है? क्यों नहीं? राफेल क्या है? राफेल इज ए फाइटर प्लेन। क्या किसी फाइटर प्लेन में कोई यात्री होता है क्या? तो जगुआर इज ए फाइटर प्लेन। आज आप लोग राफेल के दौर के हो, लेकिन आज की पुरानी पीढ़ी, यानी आज के 15-20 साल पहले भारत के सिर्फ 2 फाइटर प्लेन थे जो भारत की वायुसेना की रीढ़ की हड्डी माने जाते थे। उनमें से एक जगुआर और एक मिग, जगुआर, मिग, मिराज, ये सब भारत के फाइटर प्लेन थे। तो अगर एक जगुआर जो कि एक फाइटर प्लेन है वो क्रैश कर रहा है और उसके बाद एंकर ये सवाल कर रहा है कि कितने यात्रियों के मरने की आशंका है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि उस एंकर को यह नहीं पता कि भारत की वायुसेना की रीढ़ की हड्डी कौन से विमान है, उसको यह नहीं पता कि जगुआर फाइटर प्लेन है। अगर किसी एंकर को, किसी जर्नलिस्ट को यह नहीं पता कि जगुआर इज ए फाइटर प्लेन, तो उसे एंकर होने का, उसे जर्नलिस्ट होने का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। क्यों? हम किसी को क्यों सुनते हैं? मैं सीधी सी बात कह रहा हूं, हम किसी को क्यों सुनते हैं? नहीं, अकेले नॉलेज की वजह से नहीं। गरिमा जी रेडियो में थी, उनको लोग क्यों सुनते थे? वहां वो नॉलेज तो नहीं देती थी जब आरजे थी, वो एंटरटेन करती थी, वो एंटरटेन करती थी। हम किसी को अगर सुनते हैं तो उसके कारण होते हैं। एक, हम एंटरटेन हो रहे हैं, ठीक है, हम रेडियो सुनते हैं, एंटरटेन हो रहे हैं।
दूसरा, हमें कुछ नई इंफॉर्मेशन मिल रही है। और एंकर के लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है? उसकी क्रेडिबिलिटी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आज मुझे पारुल मैम ने यहां बुला के खड़ा किया और कहा कि आपको स्किल बताएंगे, और पारुल मैम ने कहा कि इनका 3 डिकेड्स का अनुभव है, तो आपको लगेगा कि अरे हमसे तो ज्यादा जानता होगा, ये कुछ तो बता के जाएगा काम का। अगर मैं एंकर नहीं होता और मैं आपको एंकरिंग के बारे में बताता, तो आप मुझे सुनते? आप कहते यार तो खुद आज तक कभी टीवी पे आया नहीं, हमको एंकरिंग पढ़ाने आ गया, हमको बताएगा एंकरिंग की टिप, खुद आज तक कभी एंकर भी बना। तो क्रेडिबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो एक ऐसा एंकर, एक ऐसा जर्नलिस्ट जिसको जगुआर नहीं पता हो, क्या वो मेरे लिए क्रेडिबल सोर्स है इंफॉर्मेशन का? मैं तो किसी एंकर को इसलिए देख रहा हूं, किसी चैनल को इसलिए देख रहा हूं क्योंकि वो मेरे से ज्यादा जानते हैं, उसके पास, उस चैनल के पास मेरे से ज्यादा खबर है, उस एंकर के पास मेरे से ज्यादा इनडेप्थ नॉलेज है किसी सब्जेक्ट की, तभी वो वहां डिबेट कर रहा है, तभी वो बता रहा है। लेकिन अगर उसको जगुआर ही नहीं पता, तो इसका मतलब मेरे लिए उसकी क्रेडिबिलिटी जीरो है। जहां क्रेडिबिलिटी जीरो हो गई, वहां पर टेलीविजन एंकर की जो लाइफ है वो खत्म हो गई। अब इसका मतलब क्या हुआ कि टेलीविजन जर्नलिस्ट बनने के लिए, एंकर बनने के लिए पहली क्वालिटी क्या है? यस, पहली क्वालिटी आपकी नॉलेज है, आपकी इंफॉर्मेशन, आप कितना जानते हो, आप कितना अवेयर हो। जर्नलिस्ट के स्पेलिंग क्या होते हैं? JOURNALIST। लेकिन एक एंकर और एक अच्छा रिपोर्टर JOURNALIST का जर्नलिस्ट तो होता है, लेकिन साथ साथ वो GENRALIST का भी जर्नलिस्ट होता है, यानी उसको जनरल चीजों की अवेयर होती है। आपके आसपास जो अब जब मैं जनरल चीजें कह रहा हूं, इसका मतलब मैं जनरल नॉलेज नहीं कह रहा हूं। मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा जनरल नॉलेज का मतलब क्या। जनरल नॉलेज तो ये हुआ, मैं आपसे पूछूं अच्छा प्रधानमंत्री ब्रुनेई गए हैं, तो ब्रुनेई की राजधानी क्या है? या मैं आपसे पूछूं कि ब्रुनेई की करेंसी क्या है, ब्रुनेई कौन से साल में आजाद हुआ, ये तो जनरल नॉलेज है ना। लेकिन भाई आपको ये तो पता होना चाहिए एज ए जर्नलिस्ट कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई गए हैं, और हाल फिलहाल में पिछले कई दशकों में ब्रुनेई जाने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। आपको ये तो पता होना चाहिए ब्रुनेई के सुल्तान जो है वो क्यों दुनिया में जाना जाता है। आपको ये तो मालूम होना चाहिए ब्रुनेई कौन की क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, जियोपॉलिटिकल उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ये जनरल चीजें हैं जो आपको मालूम होना चाहिए, आप उससे अवेयर होने चाहिए। IC-814 नेटफ्लिक्स क्यों चर्चा में इस समय, जानते हैं आप लोग? अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जानते तो फिर आप इस लाइन में क्यों आए हैं? अगर आपने सुबह उठकर अखबार नहीं पढ़ा, या कल आपने घर जाने के बाद 1 घंटा कम से कम टेलीविजन चैनल नहीं देखा, यह देखने के लिए कि आपके आसपास की दुनिया में क्या हो रहा है, आपको मालूम होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में अगर चुनाव हो रहे हैं, कितने लोग जानते हैं इन चुनाव की इंपॉर्टेंस क्या है? आप में से कितने लोग बता सकते हैं? बताइए, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो रहा है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इलेक्शंस होंगे तो उसमें जो रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ से चुन के आ पाएंगे, जो अभी नहीं हो पाते हैं। इस चुनाव की सबसे बड़ी खास बात क्या है? क्योंकि ये 370 के बाद हो रहा है। 370 के बाद ये पहला इलेक्शन है जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ 370, ये जम्मू कश्मीर इलेक्शन। ये जनरल चीजें हैं, ये जनरल चीजें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। एक जर्नलिस्ट को जर्नलिस्ट भी होना चाहिए। अगर वो अपने आसपास की चीजों को नहीं जानता, आसपास की चीज़ों को नहीं समझता, तो फिर वो अच्छा एंकर नहीं बन सकता, जर्नलिस्ट नहीं बन सकता, रिपोर्टर नहीं बन सकता। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, स्किल पर आ रहा हूं। आप वॉइस मॉड्यूलेशन होता है, जो आपको मैम बताएंगी, आपके यहां गरिमा जी बताएंगी वॉइस मॉड्यूलेशन क्या होता है, ठीक है ना। आप इनको सिखा सकती हैं। वॉइस मॉड्यूलेशन एक ऐसी चीज है, इसमें ट्रेंड हुआ जाता है। आपकी वॉइस की पिच क्या है, आपका वॉइस प्रोजेक्शन क्या है। क्या आप बिना चिल्लाए अपनी आवाज दूर तक पहुंचा सकते हैं? आप कितनी गति से बोलते हैं? आप क्या इस स्पीड से तो नहीं बोल रहे कि आपके शब्द समझ में नहीं आ रहे, और आप इतनी धीरे भी तो नहीं बोल रहे कि लोगों का इंटरेस्ट लूज हो जाता है। ये सब वॉइस प्रोजेक्शन है जो आप सीख सकते हैं, आपको सिखाया जाएगा।
आप अपनी वॉइस कैसे प्रोजेक्ट करते हो, कैसे आप शब्दों को स्ट्रेस देते हो, ये सब चीजें हैं जो आप सीख सकते हैं, स्किल है, आपको सिखा देंगे। 3-4 साल आप रहेंगे, आपको सीख जाएंगे। आपका प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम है, आपको सिखा दी जाएगी, आपको बता दिया जाएगा सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, उसके बाद उसको आप सही प्रोनाउंस कर लेंगे। लेकिन आपको जनरल चीजों से अवेयर होना, ये इनमें से कोई नहीं सिखा सकता, मैं भी नहीं सिखा सकता, ये आपको खुद करना है। ये आपको यहां पर विशाल जी रोज पढ़ाएंगे नहीं कि हाँ जी बताओ ब्रुनेई के स्पेलिंग बताओ, ये बताओ, ये सब नहीं कोई पढ़ाएगा। अब आप उस दौर से निकल गए हो जब आ से अनार, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट पढ़ाया जाए, उस दौर से निकल चुके हो ना। अब यहां पर आपको अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी नॉलेज को बढ़ाना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए क्योंकि ये फील्ड आपने खुद चुनी है, आपको किसी ने धक्के मार के नहीं भेजा। अगर धक्के मार के भेजा तो दिक्कत हो सकती है, लेकिन ये फील्ड आपने खुद चुनी है, और अगर चुनी है तो इसकी चुनौतियों का सामना भी आपको करना पड़ेगा, कोई और नहीं करेगा। और इन चुनौतियों का सामना करने के लिए आपको इस फील्ड के लायक अपने आप को बनाने के लिए आपको ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, ये सब चीज़ें आपको इन्फॉर्म रहना पड़ेगा। ये इस फील्ड की मजबूरी है, जरूरी है, मजबूरी है कि आप अपने आसपास की चीज़ों से अवेयर रहें। अगर आप अवेयर नहीं हैं तो आप एक अच्छे जर्नलिस्ट नहीं बन सकते। कितने लोग आप में से अखबार पढ़ते हैं? गुड। कितने लोग नहीं पढ़ते हैं? मतलब अखबार पढ़ने का मतलब आप मोबाइल पर भी जो है कोई साइट खोलकर वो भी अखबार पढ़ नहीं आज की तारीख में। मतलब ये कि आप चीजों से अवेयर है ना, आपको मालूम है ना आसपास क्या हो रहा है। ये आज सबसे बड़ा। कल पश्चिम बंगाल में कौन सा कानून बना? कितने लोग बता सकते हैं नाम? मुझे पूरा नाम याद नहीं है। अपराजिता आपने कह दिया, मैं समझ गया। अपराजिता का मतलब क्या होता है? क्राइम नहीं, मैंने अपराजिता शब्द, अब मैं यहां पर भाषा की बात कर रहा हूं। जिसको पराजित नहीं किया जा सके वो अपराजिता है। अब वो एंटी रेप लॉ है, तो फिर ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है? ये आपको मालूम होना। मैं इन चीजों को कह रहा हूं, ये सब चीजें आपको कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं सिखाएगा, ये आपको इसके लिए खुद तैयारी करनी है। और दूसरी चीज, एक और छोटी सी बात कह के फिर मैं आप लोगों के सवाल लूंगा। तो पहली क्वालिटी जो है आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी नॉलेज, जिसके लिए आपको खुद काम करना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है आपकी भाषा। और आपको भाषा का ज्ञान भी यहां पर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि भाषा आपको खुद सीखनी है। आपको कोई वोकैबुलरी आपकी, और भाषा सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अपनी वर्ल्ड पावर, वोकैबुलरी को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? हाँ, डिफरेंट, हाँ ठीक है, बिल्कुल, बुक्स पढ़ना, लिटरेचर आप पढ़ोगे, लेकिन सिर्फ पढ़ना ही काफी नहीं है। हाँ, सुनना भी काफी है, लेकिन नए शब्द सीखने के लिए अपना एक रजिस्टर बना लीजिए। आपको जहां नया शब्द मिले उस रजिस्टर में लिख लीजिए। क्योंकि क्या होता है, ये जो शब्द होते हैं, ये जो विचार होते हैं, ये बड़े बेवफा होते हैं। आते हैं, चले जाते हैं, कोई आपके साथ नहीं बैठेगा। आपको उनको हाथ पकड़ के अपने साथ बैठाना पड़ेगा। अब हाथ पकड़ के कैसे? जैसे बचपन में याद है आपको कहा जाता था शब्द के वाक्य बनाओ। आपको बताया था दोस्त शब्द के 5 वाक्य बनाओ। क्यों कहते थे? ताकि दोस्त शब्द आपके जहन में घुस जाए। जब आप उसका वाक्य बनाते थे, लाइन बनाते थे, तो आपको वो शब्द आ जाता था। हम बहुत सारे शब्द जानते हैं, लेकिन हम उसका प्रयोग नहीं करते ना, तो हमारे मुंह से वो शब्द निकलते भी नहीं। आप कभी भी ये चीज आजमा के देखना। अब जैसे मान लो इंडिया ने रॉकेट लॉन्च किया। अब लॉन्च किया तो सब जानते हैं, प्रक्षेपित किया। भारत ने GSLV-3 प्रक्षेपित किया। अब ये शब्द आपने शायद सुना होगा, लेकिन आप प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोग प्रयोग करते ही नहीं होंगे। तो किसी शब्द को सीखने के लिए बड़ा जरूरी है कि हम अपनी एक डायरी, एक रजिस्टर मेंटेन करें। हमें जहां नया शब्द मिले उस शब्द को लिख लें, और उस शब्द को सोचें कि अगले 2 दिन मैं इस शब्द को प्रयोग करूंगा। और मैं अक्सर जब यंगस्टर के बीच जाता हूं, कहता हूं कि आप तो
अब आप जैसे सब एक क्लास में हो, आपका 3 लोगों का ग्रुप है, आपने हंसी हंसी में सीख सकते हो, आपने डिसाइड किया यार आज मैंने ना ये शब्द सीखा प्रक्षेपित, चलो अगले 3 दिन हम यही करेंगे इस्तेमाल। आप मजाक में करने लगो, आप मजाक में करो, अरे तुम अपना जूता मत प्रक्षेपित कर देना। आपने मजाक मजाक में किया, वो शब्द आपका अपना हो जाएगा। देखिए ज्ञान और भाषा ये 2 चीजें हैं, अगर आप इनको गले लगाओगे तो ये आपके अपने हो जाएंगे। इनको गले लगाइए, इनको अपना बना लीजिए। अगर ज्ञान और भाषा को आपने अपना बना लिया तो आपको एक अच्छा पत्रकार, और सिर्फ पत्रकार नहीं, एक अच्छा कम्युनिकेटर होने से कोई नहीं रोक सकता। और मैं पत्रकार से आगे की बात कर रहा हूं, मैं कम्युनिकेटर कह रहा हूं। एक अच्छा कम्युनिकेटर क्या होता है? जरूरी नहीं पत्रकार हो, लेकिन अच्छा कम्युनिकेटर कहीं भी जाएगा, खड़ा होगा, तालियां बटोरेगा, क्योंकि वो अच्छे से बात अपनी कम्युनिकेट कर पा रहा है। बहुत सारे लोगों को लगता है यार मेरे मन में तो बात है लेकिन मैं बता नहीं पा रहा, इसका मतलब आप अच्छे कम्युनिकेटर नहीं हो। तो एक अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए भाषा को, ज्ञान को, नॉलेज को अपना बना लीजिए, आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बन जाएंगे। और अच्छे कम्युनिकेटर बन जाएंगे, अच्छे पत्रकार बन जाएंगे। मुश्किल कुछ भी नहीं है, लेकिन संघर्ष करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, डेडिकेशन की ज़रूरत है। अगर आप डेडिकेशन के साथ काम नहीं करेंगे, मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं कहता, लेकिन मैं सिर्फ एक बात बोलूँ, आपको मालूम है मैं आज भी, बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं होगा, मैं आज भी, मेरा 9 से 10 शो आता है। मैं अभी यहाँ से ऑफिस जाऊँगा, अपने शो की तैयारी, बाकी सब ऑफिस के काम होंगे। 10 बजे मेरा शो ख़त्म होता है और मैं रात को 2 बजे तक ऑफिस में रहता हूँ। क्यों? क्योंकि रात को शांति होती है, खामोशी होती है। रात को कोई चीज़ पढ़ना, कोई चीज़ लिखना, कुछ रिसर्च करना सबसे बढ़िया टाइम होता है। अब मैं सोचूं कि मुझे, और मैं सच यकीन से बता रहा हूं क्योंकि मेरा 9 से 10 का शो होता है, मैंने पिछले 4-5 साल से अपने दोस्तों की कोई पार्टी अटेंड नहीं करी है। मैंने पिछले 4-5 साल से, मेरे फैमिली में भी कोई फंक्शन होता है, मैं लास्ट व्यक्ति होता हूं, जब वहां पर बर्तन धुलने शुरू होते हैं तब मैं वहां पहुंचता हूं। लेकिन मेरी अपनी ये लाइफ मैंने खुद पसंद की है ना, ये मैं किसी को दोष नहीं दे सकता। और दूसरी बात यह है कि ये देखिए, एक बात और बता रहा हूं, क्योंकि मैं 9 से 10 का शो करता हूं, प्राइम टाइम शो है, कहीं ना आपके मन में यह भी रहता है, अगर मैंने आज शो छोड़ दिया, अगर एक हफ्ते अशोक श्रीवास्तव शो से गायब हो गया, लोग अशोक श्रीवास्तव को भूल जाएंगे। इस बात को याद रखिए, ये जो फील्ड है ये बहुत बेवफा लाइन है। आज आपको लोगों ने चढ़ाया, कल को आप गायब हो जाओगे। द मोमेंट जो दिखता है वो बिकता है। आज आप स्क्रीन पर नहीं हो, लोगों को याद, बहुत सारे मैं जिस दौर में आया उस समय के बहुत बड़े बड़े एंकर थे, बहुत बड़े बड़े रिपोर्टर थे। आज हम बैठते हैं तो याद आता है, अरे अच्छा वो भी था, एक वो भी था, गायब हो गए। तो आपको रोज संघर्ष करना पड़ता है इस फील्ड में बने। पहले आप यहां तक पहुंचने के लिए संघर्ष करते हो, पहले मैं प्राइम टाइम एंकर बनने के लिए संघर्ष करता था, अब मेरा रोज का संघर्ष उस जगह पर बने रहने के लिए होता है कि मेरे से कोई अच्छा काम ना कर सके, मेरे से बढ़िया शो किसी का नहीं होना चाहिए। और मुझे गर्व है कि मेरा शो टेलीविजन पर डीडी न्यूज़ पे सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला शो है, और कंटिन्यूसली पहली बार ऐसा हो रहा है कि डीडी न्यूज़ का कोई शो प्राइवेट चैनल को टक्कर दे रहा है। तो ये गर्व हो। तो आप पहले पहुंचने के लिए संघर्ष करते हो, और पहुंचने के बाद आप रिलैक्स नहीं हो जाते कि आप, अरे आप तो प्राइम टाइम एंकर बन गए, अब रिलैक्स। आपके पीछे लाइन लगी है जो आना चाहते हैं। तो आपको अपनी जगह पर बने रहने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। तो मैं आज आपको जितनी बातें बता रहा हूं वो आपको डराने के लिए नहीं बता रहा हूं, समझाने के लिए बता रहा हूं कि इस लाइन में आप आए हो तो कमर कस के आइए, मेहनत करने के लिए, संघर्ष करने के लिए तैयार रहिए, बहुत कुछ दांव पे लगाने के लिए तैयार रहिए, तब आप इस फील्ड में एक सक्सेसफुल जर्नलिस्ट बन सकते हैं। फिलहाल मेरी ओर से इतना ही। कुछ चीज़ें मैं आपको, आपके सवालों के जवाब होंगे उसमें देने की कोशिश करूंगा, और मैं चाहूँगा आप लोग खुलकर सवाल पूछें, और कोई भी सवाल कर सकते हैं मुझसे। मुझे किसी सवाल से डर नहीं लगता, मैं किसी सवाल से पीछे नहीं हटता, और आप चाहें तो मुझसे कड़वे से कड़वा सवाल कर सकते हैं। कोई सेंसरशिप नहीं है। यस, बिल्कुल ओपन डिस्कशन। अगर आपको इस फील्ड को लेकर कोई भी चीज़ है तो आप ओपनली पूछेंगे, जितना खुलकर पूछेंगे उतना खुलकर मैं जवाब दूंगा।
ऑलराइट सर, माय नेम इज़ आमरोज मेसी। सो मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे आपने बोला था कि कहते हैं हर एक इंसान बायस्ड होता है, चाहे वो एंकर हो, जर्नलिस्ट हो। तो सर फिर क्या बोलते हैं, अगर हमने वहाँ पर बायसनेस शो कर दी, एंड आई डोंट नो क्या कहते हैं आपने कभी बायसनेस, मुझे एक इंसिडेंट जानना है जहाँ पर आपने बायसनेस शो करी थी और वो फैक्चुअल उसके आपके अंदर आ गई थी, और आपने उसको कैसे टैकल करा था? ओके, देखिए पहली बात मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, जो मैंने बायसनेस की बात की। और देखिए टेलीविज़न में या मीडिया में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है रिपोर्टर और एक होता है एडिटर। समझ रहे हैं? रिपोर्टर और एडिटर, कॉरेस्पॉन्डेंट एडिटर, दो चीज़ें होती हैं। जब आप इस फील्ड में आएंगे तो आप रिपोर्टर होंगे, एडिटर नहीं होंगे। एडिटर एडिटोरियल लिखता है। आप अखबार जब पढ़ते हैं तो अखबार के पहले पन्नों पे खबरें होती हैं, वहाँ एडिटोरियल नहीं होता। एडिटोरियल पेज पे एडिटोरियल होता है, और उस एडिटोरियल में एक विचार होता है, उस एडिटोरियल में एक बायसनेस भी हो सकती है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जब आप इस फील्ड में आए हैं, जब आप रिपोर्टर हैं, क्योंकि आप शुरुआत करोगे रिपोर्टर होंगे, एक रिपोर्टर के लिए फैक्ट से बढ़कर कुछ नहीं है। आपके विचार भी मायने नहीं रखते। आपको कुछ भी हो, आपके सामने जो फैक्ट्स है आप वो फैक्ट्स रखोगे, क्योंकि आप रिपोर्ट करने गए हो। आपकी बायसनेस, आपकी आइडियोलॉजी, आपके विचार सब पीछे रह जाएंगे। लेकिन जब आप एक एडिटर हो जाते हैं तो वहां पर आपकी जो आइडियोलॉजी होती है, आपके जो विचार होते हैं, आपके, क्योंकि आप एडिटर हो तो एडिटोरियल लिखोगे। एडिटोरियल में आप एक खबर के ऊपर अपने विचार दे रहे होते हो। अब फर्ज कीजिए, मैं एक छोटा सा मान लीजिए उदाहरण देता हूं कि मान लीजिए ममता बनर्जी ने कल अपराजिता कानून लेकर आई। अब मैं अगर उस पर एक शो कर रहा हूं, बिकॉज मैं एक एडिटर हूं, मैं शो कर रहा हूं, तो मैं उस पर अपने विचार खुलकर रखूंगा, क्योंकि मैं एक एडिटर की तौर पर मैं ये कहूंगा कि कानून, मैंने कल इस पर शो किया, मैंने कहा कानून बहुत अच्छा है, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है। और जो प्रैक्टिकल नहीं है, मैं ये कह रहा हूं तो इसलिए नहीं कि मैं ममता बनर्जी के प्रति बायस हूं, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं फैक्चुअली ये बात कह रहा हूं। और फैक्चुअल क्या है? 21 दिन के अंदर आप किसी भी रेप केस की जांच पूरी नहीं कर सकते। यह सिर्फ एक आई वॉश है ममता बनर्जी का। यह सिर्फ ममता बनर्जी का एक जो है, कह सकते हैं कि उन्होंने जिस तरह से वो घिर गई हैं कोलकाता रेप केस में, उसको मैनेज करने के लिए उन्होंने जो है एक कानून बनाया। कानून अच्छा हो सकता है, हो सकता था, लेकिन 21 दिन में जांच, क्योंकि आपको मालूम है फैक्ट्स क्या है। फैक्ट्स ये है कि रेप केस में, किसी भी केस में आपको फॉरेंसिक लैब से आपको जांच, आपको रिपोर्ट चाहिए, आपको गवाहों को लाना पड़ेगा, आपको गवाहों की सारी टेस्टिमोनी लेनी पड़ेगी। क्या आप 21 दिन में कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज है। तो मैंने अपने शो में खुलकर कहा, ये मैं कह सकता हूं क्योंकि मैं फैक्चुअली कह रहा हूं। अगर आप मुझे फैक्चुअली रॉन्ग प्रूव कर दोगे तो मैं मानूंगा, लेकिन मुझे ध्यान नहीं, जो आपने कहा मुझे ध्यान नहीं कि मुझे फैक्चुअली कभी पीछे हटना पड़ा। ऐसा मेरे साथ कभी शायद हुआ नहीं है, कभी हुआ होगा तो मुझे ध्यान नहीं, और कभी हुआ भी होगा तो मुझे माफ़ी मांगने में भी कोई संकोच नहीं है। कई बार होता है, हम लोगों के सबके साथ होता है। हम लोग कई बार जो है कोई चीज़ हमारे सामने आती है, हम लोग बिना फैक्ट चेक किए उसको ट्वीट कर देते हैं, बोल देते हैं। मैंने टेलीविज़न पर तो मुझे याद नहीं, क्योंकि टेलीविज़न पे जाने से पहले मैं फैक्ट चेक कर लेता हूँ, लेकिन हाँ कई बार भावनाओं में बहकर सोशल मीडिया पे मैंने कई चीज़ें ऐसी पोस्ट कर दी जो मुझे बाद में पता चला ठीक नहीं है। मैं उसको डिलीट भी करता हूँ, उसके बाद माफ़ी भी मांगता हूँ। वो उसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि माफ़ी मांगने से आप छोटे नहीं हो जाते। और दूसरी बात है, माफ़ी मांगने का मतलब ये है आपको रियलाइज़ हुआ कि आपने गलती की, और द मोमेंट आप रियलाइज़ कर लेते हैं कि आपने गलती की, उसके बाद आप गलतियाँ रिपीट करने से बचते हैं। अगर आपने यही सोच लिया कि आप तो गलती कर ही नहीं सकते, अगर आपने यही सोच लिया नहीं यार हो गया तो हो गया, क्या फ़र्क पड़ता है, तो आप एक गलती रिपीट करोगे, और जो आदमी गलती रिपीट करता है वो सही नहीं होता। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि बायस होने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आपको अपनी एडिटोरियल लाइन से कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है? फर्ज कीजिए कि एक, मान लीजिए टीवी न्यूज़ 18 ग्रुप है, अब वो आपको पता है कि अंबानी का ग्रुप है। अब अगर आप अंबानी को रोज़ गाली देना चाहते हो, आप चाहते हो कि राहुल गांधी की तरह रोज़ अंबानी को गाली दो कि अंबानी ने देश लूट लिया, देश लूट लिया, तब आप न्यूज़ 18 में सर्वाइव नहीं कर सकते ना। आपको अगर अंबानी को गाली देनी है तो फिर न्यूज़ 18 में आप काम नहीं कर पाओगे। तो वो आपको अपनी एडिटोरियल लाइन से सिंक करते हुए, जिस जगह भी आप हैं, आपको
अपनी आइडियोलॉजी को, या आइडियोलॉजी नहीं कहना चाहिए, अपने विचार को आपको उस हिसाब से आगे बढ़ाना है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, फैक्ट्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, फैक्ट्स से आगे कुछ नहीं है। और एक एडिटर, एक एंकर अगर एडिटर है तो वो अपने विचार रख सकता है, लेकिन वो विचार भी आपके फैक्चुअली करेक्ट होने चाहिए, हाफ ट्रूथ नहीं होना चाहिए, मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। गुड आफ्टरनून सर, माय नेम इज़ नित्या वर्मा। सर मेरा डाउट, सॉरी क्या नाम? नित्या। नित्या, नित्या एक चीज़ आपको, आपके लिए, सबके लिए, द मोमेंट आप अपना नाम लेते हैं इस तरह से लेना चाहिए कि आपसे कोई दूसरी बार ना पूछे, इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए। और अपना नाम लेने में, अपने आप को इंट्रोड्यूस करने में हमको प्राउड फील करना चाहिए। मेरा नाम नित्या है। सर मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि आप इस फील्ड में बहुत टाइम से हो, एंड अभी तो बहुत सारे अपडेशंस हो रही हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है। आपने अपने टाइम पे, अपने पर्सनल लेवल पे आपने क्या स्ट्रगल फेस की थी, और क्या कुछ अभी भी ऐसा है जो चेंज नहीं हुआ इस फील्ड में, जो बरसों से चलता आ रहा है, जिससे हमें आगे प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम पहले से प्रिपेयर कर सके खुद को? आपने बड़ा इंटरेस्टिंग बात पूछी। जो बरसों से चला आ रहा है, चेंज नहीं हो रहा, और एक ही चीज़ है जो चल रही है, चेंज नहीं हो रही, वो ये है कि आप सबको टाइपिंग आनी चाहिए, जो मुझे आज तक नहीं आती। मुझे टाइपिंग ही नहीं आई, मैंने सब कुछ सीख लिया, मुझे टाइपिंग नहीं आई। मैं आज भी ज़्यादातर समय अपने हाथ से, हालांकि अब मुझे टाइपिंग जो है ना, टेक्नोलॉजी आने से थोड़ी आसान हो गई, क्योंकि अब क्या है कि इंडिक टाइपिंग होती है ना, तो उसमें मुझे अशोक लिखना है, हिंदी टाइपिंग करनी होती है, तो ASH ओके मैं टाइप करूंगा तो अशोक आ जाएगा। लेकिन अगर हिंदी का वो आ जाए मेरे सामने, की वो आ जाए, बोर्ड आ जाए, तो मैं हिंदी टाइप नहीं कर सकता, मुझे टाइपिंग नहीं आती। तो पहली बात तो ये, आप लोग टाइपिंग ज़रूर सीख लीजिएगा, वो आपके बड़े काम आएगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो वो चीज़ है जो नहीं बदली, बाकी चीज़ें सब बदल गई, माइक और जो है कैमरा, सब कुछ बदल गया, सब चीज़ें बदल गई, टेक्नोलॉजी बदल गई, एडिटिंग की चीज़ें बहुत फास्ट हो गई। अब तो आपको एडिटिंग भी खुद सीखनी पड़ती है, मतलब बेसिक एडिटिंग आपको आनी चाहिए। अब वो हर आदमी की रिक्वायरमेंट है, आपके लिए वहाँ वीडियो एडिटर नहीं बैठा, और आपको ये भी आना चाहिए, कैमरा भी आना चाहिए, क्योंकि ना मालूम आप कहाँ पर हो, आपको कैमरा करना पड़ जाए। आपको मोजो भी आना चाहिए, आप अपने मोबाइल से भी शूट कर सको, आपको वो भी आना चाहिए। तो अब ये माना जाता है कि जो जर्नलिस्ट है उसको कम से कम टेक्नोलॉजिकल जो चीज़ें हैं वो उसको आनी चाहिए, वो सब चीज़ें आती हूँ, वो सब चीज़ें सीखनी आपको पड़ेंगी। और उसके साथ साथ आपको अब नई टेक्नोलॉजी में AI आ गया, बाकी सब चीज़ें आ रही हैं। अब ये चीज़ें कैसे काम करेंगी मैं नहीं जानता, क्योंकि ये बड़ी एक नई चीज़ है, लेकिन जो नई चीज़ें आ रही है वो आपको सीखनी पड़ेंगी। उनको सीखे बिना आप अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाओगे इस इंडस्ट्री में। मैंने कहा ना कि समय बदलता है, आपको चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। मैंने जब टेलीविज़न में आया था ना, तो हमारा जो एक कैमरा होता था वो हाई बैंड कैमरा होता था। उस हाई बैंड कैमरे में क्या होता था कि कैमरामैन होता था, कैमरामैन के साथ साथ एक रिकॉर्डर लेके चलता था, तो उसकी एक लंबी सी तार होती थी। तो मतलब मैं एक जगह पे शूट कर रहा था असम में, वहाँ पे इलीगल कटिंग हो रही थी पहाड़ों की। तो वहाँ पर मैं गया, तो मैंने कहा अपने कैमरामैन को, मैंने कहा बड़ी बढ़िया स्टोरी थी, मैंने कहा यार शूट करो। उसने शूट करनी शुरू करी। इतने में जो है 10-12, अब वो सब माफिया लोग होते हैं, 10-12 लड़के बाइक पर आ गए। अब मैंने देखा बाइक पे आ गए, मैंने समझ गया कि यार कुछ खतरा है। मैंने अपने कैमरामैन को बोला भागो। अब वो भागता कैसे बेचारा, कैमरामैन तो भाग गया, लेकिन वो पीछे पीछे जो उसके साथ एक पूंछ से बंधा आदमी था वो फंस गया, और गुंडों ने वहाँ पकड़ लिया हमें। और उसके बाद जो उन्होंने हमारा कैमरा वैमरा सब जो तोड़ ताड़ दिया। तो अब, लेकिन अब ऐसा नहीं, अब तो आप चुपके से मोबाइल निकालोगे, शूट करोगे, भाग जाओगे 2 मिनट में, आप बाइक पे जाओगे। तो टेक्नोलॉजी बहुत आसान हो गई है, टेक्नोलॉजी बहुत आसान हो गई है। लेकिन इसके साथ साथ, टेक्नोलॉजी आसान होने के साथ साथ चुनौतियां बढ़ गई हैं। क्योंकि अब एक बात ध्यान रखिए, एक बात और आपको बता रहा हूं, आप भले ही जर्नलिस्ट बन जाएं, लेकिन मालूम है आपका कॉम्पिटिटर सिर्फ कोई ट्रेंड जर्नलिस्ट नहीं है। आपका कॉम्पिटिटर सड़क पर खड़ा एक आदमी भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि आज कंटेंट इज द किंग। अगर सड़क पर खड़ा आदमी, वो पान वाला है, अगर उसके पास आपसे अच्छा कंटेंट है, तो वो आपसे ज्यादा जो है वो बड़ा आदमी बन जाएगा रातों रात। कंटेंट क्रिएट करना जो है वो आपको समझ आना चाहिए कि लोग क्या कंटेंट चाहते हैं। आपको लोगों की साइकी को समझना पड़ेगा, आपको लोगों के इंटरेस्ट को समझना पड़ेगा,
और उस हिसाब से आपको कंटेंट जनरेट करना पड़ेगा। टेलीविज़न में टीआरपी होती है, क्या होती है? यही होती है ना कि आपने समझा अच्छा लोग ये खबर, तो उसी हिसाब से आप अपने प्रोग्राम बनाओगे, उसी हिसाब से आप चीज़ें करोगे। तो ये जो है ना, कंटेंट इज़ किंग, इस बात को हमेशा याद। और लेकिन इसका एक अच्छा चीज़ पता है क्या, कंटेंट किंग होने से एक टाइम था जब जर्नलिस्ट, और मैं आपको दिल से बता रहा हूँ, आज के कुछ साल पहले तक मैं किसी मीडिया इंडस्ट्री में जाता था, किसी इंस्टीट्यूट में, यूनिवर्सिटी में जाता था, तो मुझे बड़ा ख़राब लगता था, मुझे लगता था मैं बच्चों से झूठ बोल रहा हूँ। क्योंकि मैं जब कहता था ना, भाई इंस्टीट्यूट तो यही कहते हैं, कॉलेज तो यही कहते हैं कि आइए हमारे यहाँ आइए, आपको जर्नलिस्ट बना देंगे, नौकरी खूब है, नौकरियों का अकाल पड़ा हुआ था। तो मुझे बड़ा ख़राब लगता था कि यार ये बच्चे आगे पता नहीं इनका फ्यूचर क्या होगा। लेकिन आज मैं आपको ये बता रहा हूँ, आज दुनिया बदल गई है। आज आपको सर्वाइवल का कोई संकट नहीं है अगर आप कंटेंट, आपको नौकरी नहीं भी मिलेगी ना, या नौकरी आपकी छूट भी जाएगी, तो जितना आप नौकरी में कमाते हो उससे ज्यादा कमा लोगे अगर आपके पास स्किल है, अगर आपके पास कंटेंट है, आप उससे ज्यादा कमा लोगे। आज बड़े सारे लोग, मैं ऐसे बहुत सारे जर्नलिस्ट को जानता हूं जो आज तक की नौकरी छोड़ करके यूट्यूबर बने हुए हैं, क्योंकि आज तक में जितना कमाते थे उससे ज्यादा वो अपने यूट्यूब चैनल से कमा रहे हैं और अपनी मर्जी से कमा रहे हैं। कोई उनका बॉस नहीं है, जब उनको लगता है तब काम करते हैं, जब उनको लगता है आराम करते हैं, लेकिन जब काम करते हैं तो अच्छा कंटेंट क्रिएट करते हैं। तो आज की तारीख में सर्वाइवल की समस्या नहीं है, समस्या सिर्फ ये है कि आप अपने आप को उस लेवल पे ले आए जहां पर आप मार्केट में खड़े रह सके, compete कर सकें। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। हेलो सर, पहले तो थैंक यू फॉर सच एन इनक्रेडिबल सेशन। थैंक यू। बट मेरा एक सवाल है, हाँ। जहाँ हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, जहाँ हम कंपटीशन की भी बात कर रहे हैं, एआई एंकर्स, ये आपके लिए और अपकमिंग एंकर्स के लिए कैसे एक चैलेंज हो सकता है? मैं एआई एंकर को कोई चैलेंज नहीं मानता। मैं मानता हूं कि एआई एंकर एक ह्यूमन बीइंग का मुकाबला नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता, नेवर नेवर। मैं बड़ा इस मामले में क्लियर हूं। बहुत सारे लोग डराते हैं आजकल कि एआई आ गया है, एंकर्स का क्या होगा। मैं कहता हूं कि ह्यूमन आदमी का मुकाबला एआई नहीं कर सकता। आदमी के इंटेलिजेंस का, आदमी का, आपको मालूम है, मुझे पता नहीं ये बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए, लेकिन अभी पिछले 2 दिन से मेरा एक क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है। और वो क्लिप वायरल क्यों हुआ? उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का, मैं कश्मीर पर एक प्रोग्राम कर रहा था। अब उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक लीडर था, तो 370 की बात चल रही थी। तो 370 की जब बात चल रही थी तो अब क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि वो अगर सरकार में आएंगे तो 370 को वापस ले आएंगे, तो मैं उसी पे क्वेश्चन कर रहा था। मैंने कहा आपको मालूम है 370 जब तक था, क्योंकि मैंने कश्मीर में रिपोर्टिंग किया 1992 जब हजरत बल में आतंकवादी घुसे थे, मैं तब से कश्मीर की रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। और कश्मीर में मैंने हर मुश्किल दौर में रिपोर्टिंग की है, हर मुश्किल दौर में। मैंने गाड़ियों पे, मेरी गाड़ी पे पत्थर चले हैं, मैंने बॉम्ब ब्लास्ट देखे हैं, मैंने एनकाउंटर देखे हैं, मतलब बहुत सारी, मेरे होटल के रूम में टेररिस्ट आ गए, मैंने वो सब दौर देखे हैं कश्मीर में। तो कश्मीर से मेरा एक अलग तरह का जुड़ाव है, पैशन है। तो मैंने उसको कहा, और मैंने वो दिन देखा है जब 370 वहाँ था और लाल चौक पे पाकिस्तान का झंडा लगा रहता था। मैंने वो दौर देखा है कश्मीर में। तो मैंने उस व्यक्ति से कहा, मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा आप ये चाहते हो कि एक बार फिर लाल चौक में पाकिस्तानी झंडा लहराएगा? तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने कहा, उसने कहा आप ये बताओ कि अगर आपके स्टूडियो में कोई पाकिस्तानी झंडा लेकर आ जाए तो आप क्या कर लोगे? अब जो मुझे नहीं करना चाहिए था मैंने वो भी कर दिया। मैं क्योंकि थोड़ा इमोशनल हूं तो मैंने कहा सुन, मैं जूते मार के निकालूंगा। और मैंने कहा तेरे को, तेरे बाप को। मैंने ये शब्द इस्तेमाल किए जिसके बाद में मुझे पश्चाताप हुआ, क्योंकि एज एन एंकर मुझे इन शब्दों से परहेज करना चाहिए था, मुझे शब्द नहीं कहने चाहिए। लेकिन मैंने कहा कि मैं जूता मार के निकालूंगा और किसी के बाप में हिम्मत नहीं यहाँ पे पाकिस्तान का झंडा लेकर आ जाए। अब वो, मैंने उसको कुछ नहीं किया, मैंने उस क्लिप पे चुप बैठा है, क्योंकि मुझे लगा यार मैंने ज़्यादा इतना नहीं करना चाहिए था। अब वो आज 2 दिन से क्लिप कहाँ से निकला, वो वायरल हो गया। अब आपके पास भी है। अब क्या एआई जो है ये कर सकता है? एआई नहीं कर सकता। अभी मैं कल एक बार और ऐसे मेरी कई जो क्लिप वायरल है, क्योंकि क्लिप जो वायरल होती है ना, उसमें वो कंटेंट होता है जो कोई एआई जनरेट नहीं कर सकता। ये तो मैंने आपको बताया जो गुस्से में, लेकिन जो एक्चुअल में जो बहुत फैक्चुअल चीजें और जो बहुत
बहुत इंटेंसली जो दिल से मैंने कही हैं, जो क्लिप वायरल है, वो एआई नहीं कह सकता। अभी मैं कल देख रहा था, एक वीडियो देख रहा था सोशल मीडिया पर, जो है एक लेडी जो है यूएस में, वो एलेक्सा से पूछती है, एलेक्सा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप को वोट क्यों करना चाहिए? तो एलेक्सा कहता है कि किसी पर्सनल कैंडिडेट के बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। लेकिन द मोमेंट एलेक्सा उससे कहती है कि अच्छा कमला हैरिस को वोट क्यों करना चाहिए, तो वही एलेक्सा जवाब देते हैं कि कमला हैरिस क्योंकि पहली लेडी वीपी है, कमला हैरिस ऐसी है ऐसी, इसलिए वोट करना चाहिए। तो वहां पर ये जो टेक्नोलॉजी है उसका बायसनेस दिखाने के लिए उसने वीडियो बनाया। लेकिन मैं बायसनेस छोड़ दिए, मैं कह रहा हूं कि कोई भी टेक्नोलॉजी इंसान का मुकाबला नहीं कर सकती। अभी आपको मैं कह रहा हूं, ये किसने शुरू किया? आज तक ने शुरू किया। लेकिन आज तक में जब अंजना न्यूज़ पढ़ती है, अंजना का जो एआई अवतार है और अंजना जो रियल है, उनमें ज़मीन आसमान का अंतर है। वो न्यूज़ पढ़ने वाली उसको आप एंकर भी बना दोगे, शो भी करवा दोगे, तो वो शो नहीं कर सकते है जो अंजना कर सकती है। तो मैं मानता हूं एआई कोई चुनौती एंकर्स के लिए नहीं है। हां, टेक्नोलॉजी की चुनौती ये जरूर होती है कि जॉब्स कम हो जाती हैं। टेक्नोलॉजी आती है ना तो काम आसान हो जाता है, तो ये चीज़ ज़रूर हो सकती है। हो सकता है कि एआई आने के बाद जो चैनल में रिसर्च विंग है वो कमज़ोर हो जाए, वहाँ पे ज़्यादा लोग ना रखे जाएं। हो सकता है एआई आने के बाद दूसरे जो जॉब्स हैं उन पे असर पड़ जाए, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन आदमी के ब्रेन का, आदमी के इमोशंस का मुकाबला कोई एआई टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती, ये मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम गौरव मिश्रा है। सर मेरा आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन था कि आपके पास बहुत एक्सपीरियंस है, तो कोई जो इंटरेस्टेड है, मैं ये जानना चाह रहा था कि हमें एक्सप्लोर और ट्रैवल करने की अपॉर्चुनिटीज़ कितनी मिलेंगी? क्योंकि सर लाइक यू सेड, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है बस 10 से 5 डेस्क पे बैठ के लिखने का। तो बाहर जाने का, दुनिया देखने का, लोगों से मिलने का, ट्रैवल करने का, इन अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में आप हमें क्या क्या बता सकते हैं? आप ट्रैवल करना चाहते हैं? काइंड ऑफ सर। अच्छा, ओके। और एक्सप्लोर करना करना चाहते हैं, बेसिकली दुनिया देखना। ओके, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सर। देखिए, पहली बात तो देखिए, फील्ड ऐसी है कि इसमें एक्सप्लोर करने का मौका तो मिलता है, लेकिन आपको ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से एक्सप्लोर, आप क्या करना चाहते हैं। जैसे मुझे ना कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं होती, लेकिन मुझे कई बार ना हमारे जो फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट होते हैं उनसे ईर्ष्या होती है। कोई पोलैंड जा रहा है, अब वो ब्रुनेई गए हुए रिपोर्टर, तो मुझे कई बार लगता है यार पोलैंड में। फिर मुझे कई बार ना, पहली बार मुझे स्पोर्ट्स अपने जो रिपोर्टर्स हैं उनसे ईर्ष्या हुई, क्योंकि ओलंपिक हुआ तो वो 10 दिन पेरिस में बैठे हैं। अब मैं क्योंकि पॉलिटिकल रिपोर्टर में हूं तो मेरा वो, हालांकि मुझे मौका मिलता है, लेकिन मुझे क्या मौका मिलता है? मुझे मिलता है प्रधानमंत्रियों के साथ ट्रैवल करने का मौका मिलता है। तो प्रधानमंत्री के साथ ट्रैवल करने का मौका मिलता है तो उसमें क्या होता है? उसमें जाना तो होता है, विदेश दौरे, उसमें भी मौका मिलता है। मैं यूएस जनरली पीएम के जितने यूएस ट्रिप है मैंने कवर किए हैं, उसमें मनमोहन सिंह से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के जितने यूएस ट्रिप हैं मैंने किए हैं। तो मुझे यूएस, लेकिन एक ही यूएस में जाता हूँ, उसके अलावा मुझे कहाँ जाने का मौका मिला? मुझे पाकिस्तान जाने का मौका मिला, मुझे अफगानिस्तान जाने का मौका मिला, पेरिस जाने का मौका नहीं मिला। लेकिन एक बार मुझे पोर्ट ऑफ स्पेन जाने का मौका मिल गया। अब मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था मुझे पोर्ट ऑफ स्पेन जाने का मौका मिलेगा। मैंने पोर्ट ऑफ स्पेन, जहाँ पर वो कौन सा उनका खिलाड़ी है, रिचर्ड्स, वहाँ पर जहाँ खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, मुझे उस ग्राउंड में जाने के, वहाँ क्रिकेट खेलने का। तो एक्सप्लोर, आप कश्मीर मुझे बहुत जाने का मौका मिलता है रिपोर्टिंग के रूप में। तो पहली बात तो एक्सप्लोर करने का मौका खूब है, घूमने का। लेकिन इसके अलावा मैं कह रहा हूँ, ये चीज़ है कि आपको जहाँ इवेंट होगा वहाँ भेजा जाएगा। उसके लिए आप कौन सी फील्ड में जा रहे हो ये आपको सोच समझ के जाना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप एक फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट बन रहे हो तो आपको बहुत कुछ घूमने का मौका मिलेगा। लेकिन इसके अलावा एक बात और मैं कह रहा हूँ, आज की तारीख में ट्रैवल जर्नलिज्म चैनल में बहुत कम है, लेकिन मेरे साथ काम करने वाला, डीडी न्यूज़ में काम करने वाला एक रिपोर्टर, वो जॉब छोड़कर वो ट्रैवलॉग कर रहा है और उसमें उसको पैसा भी मिल रहा है, उसको घूमने का भी मौका मिल रहा है। वो देश विदेश में जाता है, घूमता है, वहाँ के वीडियो बनाता है। बहुत सारे लोग फूड के ऊपर जो बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो दुनिया भर में घूमते हैं, वीडियो बनाते हैं, उससे उनकी इनकम भी हो रही है। होता क्या है, जब आप किसी जगह जाते हैं तो आपको होटल वाले आपको जो है स्पॉन्सर करते हैं कि अच्छा आप हमारे होटल में ठहरो, हमारे होटल पे वीडियो बना देना, आपको रहने का कुछ नहीं।
खाने के लिए जा रहे हो किसी जगह पर, वहाँ आपको फ्री में मिल गया। आपको ट्रैवल करने के लिए बहुत सारे जो टूर ऑपरेटर्स हैं आपका ट्रैवल जो है वो स्पॉन्सर कर देते हैं। तो एक्सप्लोर बहुत कुछ किया जा सकता है, पर आपको उस हिसाब से अपने आप को तय करना पड़ेगा कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हो। अगर मुझे 10 दिन पेरिस घूमना होता है तो मुझे फिर एक स्पोर्ट्स रिपोर्टर बनना चाहिए था, फिर मैं 10 दिन पेरिस में रहता, लेकिन वो मैं नहीं कर सकता। जो मैं कर सकता हूँ मैं वो कर सकता हूँ। हाँ, प्रधानमंत्री के दौरे की रिपोर्टिंग, और प्रधानमंत्री के दौरे में होता क्या, प्रधानमंत्री ऐसे जाते हैं 2 दिन 3 दिन में वापस आ जाते हैं। तो वो 2-3 दिन का दौरा होता है, वो भी धड़ाधड़ सुबह से शाम तक प्रोग्राम होते हैं। लेकिन अब पेरिस में 10 दिन तक बैठे हो वो कर रहे हो तो वो एक अलग इन्जॉय होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी इस पूरी फील्ड में आपके पार्ट एंड पार्सल है। तो आप इसमें किसको पिक एंड चूज़ करना चाहते हो इस पर डिपेंड करता है। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों होता है या क्या होता है कि जब भी कोई जर्नलिस्ट होता है, रिपोर्टर है, किसी डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन या किसी पर्सन के पीछे जाता है, रिपोर्टिंग करता है, तो उसको डेथ थ्रेट्स आते हैं या तो उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो चैनल है वो रिपोर्टर को सेव करता है या तो वो अबैंडन कर देता है। तो ऐसा क्यों होता है और उनको क्या एक्चुअली करना चाहिए? आपने बहुत सेंसिटिव सवाल पूछा। देखिए, दुर्भाग्य की बात है। पहली बात तो ये है कि देखिए, एक बात ज़रूर है, इस फील्ड में जब आप आते हैं तो आपके साथ बड़े सारे रिस्क फैक्टर होते हैं। ठीक है, जब मैं आपको सही बता रहा हूँ, जब मैं 2008 में, कश्मीर बहुत ज़्यादा लेकिन 2008 में मुझे कश्मीर जाने के लिए बोला गया। ये वो समय था जब वहाँ पर रोज़ पत्थरबाजी हो रही थी, और वो 2008 पहला वो दौर था जिसमें जर्नलिस्टों को भी निशाना बनाया जा रहा था। और मैंने अपने ऑफिस में हमारे ऑफिस में, क्योंकि वहाँ इलेक्शंस थे, तो मुझे कहा कि कश्मीर जाना है। तो जब कश्मीर जाने की बात आई तो हमारे ज़्यादातर लोगों ने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, मैं जाऊँगा। लेकिन मैंने ऑफिस में जाके एक डिमांड करी। मैंने कहा कम से कम इंश्योरेंस तो करवा दीजिए, अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा। तो उन्होंने कहा हाँ इंश्योरेंस करवा देंगे। लेकिन इंश्योरेंस करते करते भी जब तक मेरा जाने का समय गया इंश्योरेंस नहीं हुई। मालूम है, मैंने ज़िंदगी में पहली बार मैं कश्मीर डर कर गया था। और उस दिन मैंने क्या किया था, मैंने रात को घर में बैठकर एक चिट्ठी लिखी। और उस चिट्ठी में मैंने ये लिखा कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो फिर क्या होना चाहिए। और वो मैंने अपने दोस्त को, अपने बहुत करीबी दोस्त को मैंने रात को बुलाया और उसको मैंने बंद लिफाफे में चिट्ठी दी। मैंने कहा अगर मैं कश्मीर से ना लौटूं तो ये चिट्ठी जो है पब्लिक कर देना। ये रिस्क होता है। ईश्वर की कृपा थी, मैं सुरक्षित आ गया। 2011 में मैं किडनैप हुआ था। 3 बंदूकधारियों ने मुझे इधर गन लगाकर 6 घंटे किडनैपर्स के साथ था। 6 घंटे मैंने मौत को ऐसे देखा, मुझे लगा अब ये मेरे को मार देंगे, शायद अब मैं नहीं बचूंगा। वो फिर कह रहा हूँ, ईश्वर की कृपा बच जाते हैं। थ्रेट्स आज भी रोज़ आती हैं, रोज़ थ्रेट आती हैं। रोज़ आप मेरे सोशल मीडिया पे चले जाइए, रोज़ मुझे थ्रेट आती हैं कि तेरे को तो हम ये कर देंगे, वो सब है। ये भी इस फील्ड का पार्ट एंड पार्सल। अगर आप बुलंदी के साथ काम कर रहे हो तो फिर थ्रेट्स आते हैं। और ये जो दुर्भाग्य की बात है, बड़ी शर्म की बात है, दुर्भाग्य की बात है। और मैं मैम आपकी अनुमति से एक यहाँ पर छोटी सी बात और बता रहा हूँ, क्योंकि वो मैंने विशाल आपके लिए भी बड़े इंपॉर्टेंट, मैं एक जानकारी भी दे रहा हूँ। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि किसी टेलीविज़न चैनल में, किसी अखबार में, किसी जर्नलिस्ट को कुछ हो जाता है, उसको उसका चैनल भी नहीं पूछता। ये हाँ छोड़ देते हैं। मतलब हमने ऐसे केसेस देखे, वो आपके लिए आपके चैनल का आदमी था, आपने अपनी नौकरी, आपने सोचा ठीक है चला गया, आपने 1-2 बार दिखाया, कुछ दिया उसके फैमिली को 2-4, उसके बाद छोड़ दिया। बहुत शर्मनाक है। और ये चीज़ मुझे अंदर तक कचोटती है। और कचोटने का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ आपको बुरी लगती है तो आप चुपचाप ये सोचो बुरी लगती है, आप कुछ करो नहीं। इंसान है तो कुछ करना भी चाहिए ना। आप यहां पर आ गए हो तो जिंदगी में कुछ करके। तो मैंने आपको बता रहा हूं, अभी 3 दिन पहले मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर करा दी है। मैं पिछले 2 महीने से काम कर रहा था। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सैफरन इंक फाउंडेशन। और उस फाउंडेशन के अंदर मैं ऑलरेडी दो संस्थाओं से बात कर चुका हूं। उसके अंदर मैंने ये सोचा है कि जितने जर्नलिस्ट होंगे, कल को आप भी जब भरेंगे तो आप भी हमारे सैफरन इंक फाउंडेशन के मेंबर्स बनना। हमने ये तय किया कि हमारे जितने मेंबर्स होंगे हम उनको एक लाइफ कवर देंगे, हम उनको एक इंश्योरेंस पॉलिसी देंगे। हम उनके साथ कुछ भी हो जाता है तो उनकी फैमिली में, उनके बच्चों को एजुकेशन की प्रॉब्लम ना हो, उनकी फैमिली को इतनी प्रॉब्लम ना हो, हम उनके लिए फंड रेजिंग करेंगे। हम जर्नलिस्टों का साल में 1 बार फ्री हेल्थ चेकअप कराएंगे, क्योंकि बहुत सारे जर्नलिस्ट जो है पिछले कुछ समय में यंग एज में अचानक से उनकी डेथ हो गई।
तो ये सब चीज़ें जो हैं, मैं ऑलरेडी, मुझे बहुत समय से ख़राब लग रहा था और इसलिए मैंने ऑर्गेनाइजेशन बना दी है। विद इन 2-3 मंथ्स ये ऑर्गेनाइजेशन जो ऑपरेटिव हो जाएगी। मैं 2 हॉस्पिटल्स के साथ मेरी बात चल रही है, जिनके साथ मेरा हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। और कॉन्ट्रैक्ट ये करेंगे, अगर हमारे मेंबर किसी को भी कुछ इमरजेंसी में कुछ भी ऐसा हो जाता है तो वो हॉस्पिटल कम से कम उस जर्नलिस्ट का फ्री इलाज करे। इसके लिए मैंने काम कर रहा हूँ। सो वी आर वर्किंग ऑन इट, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है, ये हम फेस कर रहे हैं और इसीलिए हमने कहा कि ये करना चाहिए और मैंने इस दिशा में मैंने काम शुरू कर दिया। वो छोड़ दो, नहीं देखो ऐसा है कि वो देखो, चैनल की पॉलिसी बदलना हमारे हाथ में नहीं है। वो बड़े बड़े मालिक हैं जो चैनल चला रहे हैं, उनको मैं नहीं, लेकिन हम जो बदलाव, कभी ये मत सोचो कि आप नीचे से बदलाव करो। जो आप कर सकते हो, जो आपके हाथ में, वो बदलाव करो। वो छोड़ दो कि ये वो नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, सरकार ये नहीं कर रही, वो ये नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, ये सब चीजें छोड़ दो। जो आप कर सकते हो वो तो करो, पहले वो करो, बदलाव आएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए और सबसे ज़रूरी हमें बैक टू बेसिक्स पे लाने के लिए। सो अगेन मैम, आई वुड रिक्वेस्ट टू प्लीज़ काइंडली प्रेजेंट द मोमेंटो टू सर। And before we end the session, I would request Mr. Vishal Sahai for a vote of thanks. नमस्कार। अशोक सर के बोलने के बाद मेरे पास कुछ रहा नहीं तहे दिल से धन्यवाद देने के। पर 2 चीज़ें हैं जो इसने प्रश्न उठाया था। सर के साथ ही मेरे 3 स्टूडेंट काम करते थे, 2, मोर मुकुट शर्मा और सर के साथ एक वो है धीरज, ये मेरे स्टूडेंट थे, और एक साहू जी जो रिपोर्टर थे। दंतेवाड़ा में लाइव उनको गोली मारी गई थी और लाइव, और जो मोर मुकुट शर्मा कैमरामैन था, तो कैमरामैन बचते नहीं है, ध्यान रखिएगा, उनके भी थ्रेट्स हैं। तो लाइव नक्सलाइट एरिया में उनको घेर लिया गया था। धीरज जो जर्नलिज्म का मेरा स्टूडेंट था वो बिल्कुल छुपा था, और मोर मुकुट शर्मा जो कैमरा असिस्टेंट हुआ करता था, उसने लाइव किया था, बोला था माँ यहीं तक मेरी ज़िंदगी थी, ऊपर गोली चल रही है। उस लाइव में दिख रहा है, वहाँ पर जो माओइस्ट हैं दिख रहे हैं कि मार रहे हैं, उसने लाइव किया था जब तक। और उसके बाद मुझे याद है जो सर ने बोली कि कोई नहीं पूछता, मुझे आज भी याद है सर ने प्रेस क्लब के अंदर उनके खिलाफ, उनके लिए आवाज़ उठाई थी। उसके बाद कई लोगों ने, उनकी जो फैमिली थी, साहू जी, उनको जो पत्रकार मरे थे उनको कंपनसेशन भी मिला। उसके बाद जो गोइंका अवार्ड है वो भी उनको मिला, जो प्रेस्टीजियस कभी कैमरा पर्सन को मिलता नहीं है। उसके बाद भी सर के प्रयास से वो मिला, क्योंकि ये मेरे लिए बड़ी इमोशनल स्टोरी थी कि दोनों ही मेरे विद्यार्थी थे और मुझे बड़ा बुरा लगा था। मैं जानता हूँ मोर मुकुट को कितना, किस टाइप का व्यक्ति है, किस टाइप का वो है। इसके बाद इसने एक प्रश्न उठाया था कि भाई कि बाहर घूमने का कितना मौका मिलता है। मेरे 5 स्टूडेंट हैं जो दूरदर्शन में ही कैमरा पर्सन हैं, और मतलब जो कॉलेज आते थे, एक हमारे हैं निक्कर इक्कर पहन के, फटी जीन्स पहन के आते थे। उस दिन सब BM स्नैक्स पे मिले, मुझे सारे फॉर्मल्स में खड़े थे। मैंने बोले कहाँ हो, बोले सर PMO में ड्यूटी लगी है। मैंने फिर PMO, बोले सर वहाँ पे ऐसे ही जाना पड़ता है, बूट पॉलिश। मैं क्या, और ये जो एक, मैंने कहा आप कौन है, तू क्या कर रहा है, बोला मैं मोदी जी के साथ हूँ। मैंने तुम भारत बरस सर डेली जाता हूँ। कह रहा सिर्फ कंट्री में पैर रखता हूँ, प्लेन में बैठता हूँ, वापस आ जाता हूँ। क्या कि रात को तो वो ब्रीफिंग करते हैं। कह रहे कि 1 मिनट भी बाहर हमको एयरपोर्ट से जाने की इजाज़त नहीं है, जो भी हम जाते हैं कार में जाते हैं, वापस आ जाते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो आप सबकी बड़ी जिज्ञासा थी कि हमको दूरदर्शन में जाना है, तो मैंने कहा मैम ने फिर बुलवाई दिया आपके सामने, नौकरी करनी है तो आ गए, DD न्यूज़ में ही जाना है आपको। तो मेरा पहला, हम लोग कहते हैं कि साहब लिंक कहाँ से बने, हमने खड़ा कर दिया ना अशोक श्रीवास्तव जी को यहाँ पे। अब प्रश्न था, जिन्होंने प्रश्न पूछे उनके नाम तो याद हो गए। कभी हैप्पी धनतेरस, हैप्पी करेंगे नए साल, तो एटलीस्ट दूरदर्शन भवन मंडी आओ, जाके आप फ़ोन तो करते हैं, सर मैं आया हूँ, सर मैं क्या मैं मिल सकता हूँ। तो सर ऐसे हैं कि वो मिल लेते हैं, चाय भी पिलाते हैं। तो ये तो मौका मिला ना, ये तो हुआ ना, लिंक ऐसे ही बनते हैं। अब जो बैठा यहाँ सत्यनारायण की कथा सुनकर चला गया कि बाद में भंडारा मिलेगा, उसके लिए तो कुछ नहीं है। तो ओवरऑल मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि जितनी भी बात बोली कि
हमारा मकसद यहाँ पर उन लोगों को, पारुल में हमेशा लगी रहती है कि यार कुछ ऐसे लोगों को लाए जिनसे आपको फायदा हो। बोले यार इनको बुलाना है, ऐसे लोगों को बुलाना है, तो हम लोग कोशिश करते हैं बुलाने के लिए कि जिससे आपका फायदा हो। अब डिपेंड करता है कि आप हमारी इस चीज को कैसे ग्रैब करते हैं, अपने लिए कैसे भुनाते हैं। हमने तो ला दिया ना सर को, क्योंकि सर से मेरा संबंध आज का नहीं है, 17 साल पुराना है, पूरे पारिवारिक संबंध है अब। तो और कई बार मिला, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इनकी दोनों बुक्स को पढ़ना, आपको पता लगेगा कि एक न्यूज रूम कैसे काम करती है। जो पहली बुक है अनसेंसर्ड, नरेंद्र मोदी का 2014 का इलेक्शन में जब विपक्ष में होके, और सर की एक खासियत है, मैं हमेशा जब भी इलेक्शन होता है तो सुबह मुबारकबाद जरूर देता हूं कि नौकरी रहेगी कि जाएगी आपकी। सर ने दोनों यूपीए और एनडीए दोनों सरकार में सर 22 साल से दूरदर्शन में टिके हैं, तो अपनी काबिलियत पे टिके हुए हैं दोनों। आप सोच लीजिए कितना प्रेशर होता है दोनों सरकारों में। बाकी कितने एंकर चले गए दूरदर्शन से, सर टिके हैं, इसका मतलब बाइसनेस तो नहीं है ना। ईमानदारी से पत्रकारिता हो रही है, कंपनी के लिए कर रहे हैं काम। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको अपना काम ईमानदारी से करना है, जो आज का ये मैं मुराल निकालूं तो। दूसरा, भाषा पे पकड़ बड़ी ज़रूरी है, नहीं तो नुक्तों को फिर में खुदा से जुदा हो जाएंगे आप, तो वो भी ठीक है ना। एक नुक्ता खुदा से जुदा कर देता है आपको। तो हम लोग सीखते हैं, हमको पढ़ाया गया जालिम जलील तिली जलालत से दूर दूर तक का वास्ता नहीं है। जंग की सोच रहा है, जंग या जंग की, कितने लोग हैं जंग की सोच रहा है। यार मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रस्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट द वॉर। कितने लोगों में जंग बोल रहे थे, जंग 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 और जंग में अंतर नहीं समझ, नुक्ते का फेर है। तो ये चीजें आपको पकड़ में आनी चाहिए। और न्यूज़पेपर तो हम लोग सभी सारे टीचर्स बोलते हैं हाथ जोड़ के, भैया न्यूज़पेपर पढ़ लो। कसम मतलब है कि सर पढ़ लेते हैं, इंस्टाग्राम पे न्यूज़ पढ़ते हैं हम लोग। तो अब इंस्टाग्राम में रील के अलावा क्या पढ़ेंगे मुझे नहीं पता। देखिए साहब, हमने पत्रकारिता तो, क्योंकि मैं तो बिहाइंड द कैमरा रहा हमेशा, मैंने डीडी उर्दू के लिए भी काम किया है, बच्चों का गोशा एक प्रोग्राम आता था उसके लिए काम करता था। हमने तो बिहाइंड द कैमरा काम किया है साहब, कैसे दौड़ लगती है हमें मालूम है। तो और समय की कोई वो नहीं है, आपको 24 घंटे काम करना है तो करना है, उसके लिए आप रोक नहीं सकते। एक अभी जब दूरदर्शन का कायाकल्प हुआ तो मेरी सर के साथ ही मीटिंग थी, उस वक्त एक किताब पे काम कर रहे थे। तो मैंने कहा आप घर नहीं जाते? बोले ना, 2 बजे तक तो डोटूक का कार्यक्रम करते हैं, उसके बाद मैं किताबें लिखता हूँ, सुबह जाता हूँ 6 बजे। सुबह का बंदा आया हुआ है, सुबह 6 बजे घर जा रहा है, 2 घंटे सो के वापस आ रहा है। क्यों? कि मुझे किताब पूरी करनी है, मोदी वर्सेस खान मार्केट गैंग। आप लोग पढ़िए, आपको पता लगेगा कि जो हम लोग फैक्ट चेकिंग पे जितनी भी वर्कशॉप कर लें, उस किताब को पढ़ लें, सफिशिएंट है। क्या फैक्ट है, किस तरीके से है। ये किताबें पढ़नी बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए, अगर पत्रकारिता में रहना है या इवन मीडिया में आपको रहना है। सर, तहे दिल से डीएमई फैमिली की तरफ से आपका तहे दिल से धन्यवाद कि आपने, मुझे पता है कि बड़ा माहौल आजकल डीडी का बड़ा चेंज है, और कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि डीजी मैम भी काफ़ी प्रोग्रेसिव हैं आप चेंजेस लाने के लिए, और दूरदर्शन अपना बहुत जल्द OTT पे ला रहा है। और डीजी मैम से जो बात हुई थी कि वो तैयार हैं आपके फिक्शंस को लेने के लिए, आपके प्रोडक्शंस को लेने के लिए, कि अगर आपकी अच्छी फिल्म्स हैं तो वो कह रही कि हम लेंगे, और अगर समय मिला उनका तो आप लोग को उनसे रूबरू होने का मौका मिलेगा जल्दी। और तो इसी के साथ आपका भी धन्यवाद, आपने बड़े तन्मयता के साथ, ईमानदारी के साथ, पेशेंस के साथ सुना और सवाल पूछे। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि जब तक आप पूछेंगे नहीं तब तक सर्वाइवर नहीं है। पूछिए, व्हाई, क्यों, खाना क्यों खाएं, हवा क्यों लें, सांस क्यों लें, पूछो। जब तक पूछेंगे नहीं कुछ नहीं होने वाला। सो अगेन थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल।